as you all know, it is the third session of our uh, webinar series on decoding the National Education Policy 2020. So today we have the topic in which we talk about the importance and challenges of foundation of numeracy, the foundational numeracy. So this event is organized by the faculties of CIC and the students of CIC with batch 8 of MME at Cluster Innovation Center, University of Delhi. So, as a part of Team Matrix, I, Sakina Kazmi, and my fellow Rishabh Tiwari is going to lead you till the end. And with us, we have Shabnam and Nida, who is going to be reporters for this meeting. Now, okay, so here we have, with the help of our convener Jyoti ma'am and our guide Alka ma'am, we have our invited and esteemed guest Dr. Anup Kumar Rajput, who will accompany us as the speaker of the session. So before we move further, I would like to introduce you to our guest a bit more briefly. Here, Anup sir is currently working with NCERT. He is a professor of mathematics and the head of Department of Elementary Education in NCERT. He has done his master's and MPhil in mathematics and the PhD in fluid mathematics. As a mathematics professor, he specializes not only in mathematics but also in mathematics education and technology in education. He has published 9 books, 8 research papers on mathematics, and 3 papers on media education. So now I'd like to move further, and I would like to share more about his anonymous services. But if I do so, a lot of time will pass, and we have a time constraint. So I'm going to move further now and tell you about how this event will work. It is a 2-hour event. At first, our respected speaker will share his perspective and give light on the topic and foundational numeracy, and in the last half hour, we will ask our doubts and queries regarding the session. Now, I hand over the virtual mic to Jyoti ma'am. Please, ma'am, take up the mic, take up the virtual podium and grace the event with some words. Thank you, Sakina. We welcome Professor Rajput with us. And Professor Rajput has long association with CIC and definitely with math education. Professor Rajput is pioneer in foundational numeracy in the country. He doesn't need any introduction. So whenever we talk about math education, so he is a very well known in the field of math education in the country. Foundational numeracy, basically, he is one of the founders, members and researcher, academician in the country who actually worked into foundational numeracy. NCERT was the first one to set up Department of Elementary Education in the country, and Professor Rajput has worked extensively in this direction. So whatever reflections are there in new education policy on foundational numeracy, Professor Rajput is one of the pioneer leader in that direction. So you could see his work, his ideas, his perspectives, and his zeal to work on this, and why foundational numeracy is fundamental for any mathematical education or any logical field to pursue in school education and further. So Professor Rajput, sir, it is an honor that you are with us. This event is organized by the students. So we have purposefully taken this initiative that students come into picture, they lead the session, they plan questions. So they have already read some preliminary things about foundational numeracy
from the policy. They have designed some questions, but definitely some more doubts and questions will come up after your interaction. So we request you to please speak about the foundational numeracy for initial 45 1 hour, and then the students have list of questions to ask to you, so that the discussion can move into the right direction. So it is important that when we are talking about foundational numeracy from mathematics point of view, from educators point of view, from pedagogy point of view, and definitely for overall cognitive development of the individual, and why it is important in early childhood years to focus on foundational numeracy. So over to you, sir, and we welcome you once again. Thank you very much. Thanks to the faculty of CIC, Madam Jyoti, and all the students of this batch who have joined this group. And I'll be talking to you, as had already been mentioned, on some of the issues related to the foundational numeracy and how it has been given an important place in National Education Policy 2020, and why we should worry more about this, and what type of activities are to be conducted. That all I'll be discussing with you. I have a slide presentation show for you. I'll be talking through this, and then maybe we may switch over to the questions and answers after this presentation. I have this. I'll try to confine this presentation to 30-40 minutes, 45 minutes, as has been mentioned, and then after that we'll be having more interaction with you, because as I understand, most of the things normally are being made clear when we have interaction, instead of only talking only saying one way. I will start from this first slide which is there, and probably you may all be wondering why literacy word is there, because I have been asked to talk on numeracy only, whereas the title of my presentation is Foundational Literacy and Numeracy, FLN. So in my opinion, we cannot talk in isolation about numeracy, and even literacy or the language development also takes place along with numeracy. If we see in our daily life, the first exposure of numbers or mathematical ideas to any child come through language. When child want to understand what others are saying and want to communicate his or her own ideas to others, then obviously we need lot of such understanding with us. And first of them is the reasoning, which normally is required. So that becomes the important aspect of teaching learning of mathematics. And maybe in the later stage we call it as mathematics, but in early stages, when child have interaction with their family members and others, so they obviously are more interested in language development and numeracy than the only mathematics. Call it as mathematics and language and social science and environment and many other things. But to a child, this all is something which he like to know, and it is around the child's daily life. And child want to have many questions which are to be answered by such presentations. When child is interacting with the environment, with the family, maybe many questions may be there. So which this child is try to understanding, and then we say that this is mathematics. So that's why for me this is language and numeracy, both the skills. But even we, since ages, we are calling it as numeracy, and as per its name, numeracy earlier was called as arithmetic, and we were calling even arithmetic. We took out A from arithmetic and we called it as writing. Arithmetic, we call it as R. Even from writing also, we took out the W part and we started it R, and then we started saying that the development of 3 R's is major aspect of preschool learning or any child's learning. But then there is 3 R took slightly different way and different form, and then we started talking of literacy and numeracy skills. But even today, when we call numeracy in isolation, has no meaning at all, because in child's daily life only numbers are not coming number one.
Number two, whatever numbers are coming, dealing with numbers is not the only idea which child will require. There are many other mathematical ideas which are required to be learned by a child, and so therefore it should be more of mathematical learning than numeracy. So as I mentioned, I take these two integrated part of child's learning, language and numeracy. I'll in between also talk why language is important, and before language development we cannot talk of development of numeracy skills, and before numeracy we cannot talk of language skills. So both of these are intervened, and say for example, literacy as has been defined is understanding, critically analyzing and creating a variety of forms of communication, including oral, written, visual, digital and multiple to accomplish one's goals. So this is basically... Professor Rajput, yes. We are not able to see your slides. Okay, let me just check what is the problem. Mukund, have you given presentation rights to sir? Sir can be co-host now? Yes, I think that is to be made. Someone Mukund, please do the needful. Ma'am, sir can present. Okay. Is it visible to you all now? No, sir. No, sir, not right now. Okay. Okay, let me just check what is the problem. That's why I connected 10 minutes before this presentation. Then someone from your side said कि चलेगा सर, अभी तो हम 2 बजे कनेक्ट करेंगे. Okay. Yes, sir. Now it's there. We could see your screen. Okay. Is it now visible? Yes, your screen is visible. You have to open the slide. We can see your desktop screen. Is it okay? Sir, we can see the black screen saying desktop, and it has your folders and files. No. Okay. Let me just check where is the problem, because I am sharing this. So please click on present now, then select a window and then select your presentation. Sir, it can be do other way also. You can send the presentation to me, and then okay. Now, again, we can see the screen only. Yeah, now it's there. It's there. It's there? Yes. It's there. Well, so as I was talking to you that literacy is very, very important when we are talking of numeracy. So we cannot in isolation talk about numeracy without talking of literacy. And as has been defined here, literacy is particularly for the communicating our ideas, oral, written, and for to communicate ideas, it is essential that the mathematical terminology, the thinking, the reasoning, and so these all are the part of communication also. So that's why we cannot isolate mathematics or numeracy from language learning. And the math skills, which we are calling as numeracy, but normally these are math skills, that is our ability to understand and apply mathematical concepts. And while we say concepts, we do not say that these higher concepts are there. Simple, a pre-number concept is also a skill or a concept which a child should understand and child should be able to apply. Then process and skills to solve problems and make decisions in a variety of situations, including real life scenarios. And for that,
this is not from foundational literacy, but the basic root cause of not a better performance in that area is here, lying here. Say, what I am going to talk is an example. If today one shopkeeper offers you that you are given 20% discount, but I charge 10% tax, 20% discount and 10% tax. So what will you choose first? Discount first or tax first? And why? So simple ability which everybody should have. And whatever mathematics is required, that normally is being taught up to class 8th. But if a child is not able to do in class 8 or in class 6, the problem is somewhere in the early introduction of mathematics, that is somewhere the introduction of numbers and their ability and their applicability in our daily life. So therefore this problem solving skill is not with the children because they have some problem with the foundational layer at the stage of foundation. So it is essential that we should somewhere build up that among a child. That's why this has been now considered that FLN is very, very important. Some of the regions which are written here, you all are very well acquainted with these regions. So that's why I'm not going to discuss these all at length, because whatever we say, maybe it may be reading, it may be writing, or it may be communicating idea by oral or by drawings or by visual presentation and so on. These all include mathematical understanding. And if we are not able to do at any stage, obviously the problem lies in the foundation. So therefore we have to improve the foundation, and almost all researches have proved this nationally and internationally. The second important aspect with why FLN, why foundational literacy and numeracy is that psychologically and neurologically also it has been proved that most of the development of brain development takes place up to the age of 8 years. So children should be given appropriate inputs, developmentally appropriate and age appropriate inputs, in order to have their understanding about the whole world. And that certainly somewhere can be looked into the foundational literacy, foundational years. So that's why in this policy also these foundational years have been given prominence. No doubt our earlier system was that child was staying at home and children were learning. And children were learning through the family. Mostly if you see the age before 50 years or 60 years before this time, all children were not expected to go to school. Many parents who even had not bothered whether my child is going to school or not, that was not considered to be an essential part, but their learning was taking place. So we cannot say that learning is only taking place in schools. Learning was taking place even at homes also. And that learning was also from the experiences, through parents, through elder siblings, through the society, through the community, and so on. So that learning was also there. But that certainly was not adequate enough, because we were learning with a slower pace. Then that was more contextual. We needed some competencies, some skills which child should apply and should be able to solve problems in unfamiliar context. But at home, child was only having ideas and training to solve problems in familiar context. Whenever some unfamiliar context were coming, that was adding into a new experience, and child was not able to learn, understand. Maybe after a particular age, child may be developing her own ideas and problem solving skills related to some new problems, but that was not at that particular pace as it should be. So that's why the schooling has taken up the language and numeracy skills learning at a very early stage. So when a child is entering, in addition to the inputs from the home, these inputs, systematic inputs, were also designed, and these were as I mentioned, age appropriate and developmentally appropriate. But what happened that ultimately, instead of age, instead of development, instead of theoretical aspect of what foundational literacy and numeracy requires, our society has derived this all on the basis of certain, say after 10 years skill, 20 years skills.
So what is expected from a child from after 10 years of schooling, they expected the child should start learning at class 1. Whereas this was the purpose of, or in the preschool also. One of the examples of such distorted way of looking into education is the preschool education in our country. Society and this market, they decide that a child in preschool should start learning letters, writing letters, then recognizing symbols and reading and writing symbols without their understanding. Recognizing letters, you had an interaction with Professor Usha Sharma ji, and Usha Sharma ji may have given you idea how our whole community, our society, our aspirations and expectations of society has destroyed whole childhood education, early childhood education. And these private schools have somewhere started looking into the market forces because they wanted to earn money, and parents want 3 साल का बच्चा लिखना पढ़ना सीख ले. Whereas वो 3 साल के बच्चे की जो cognitive development, जो उसकी psychomotor development होनी चाहिए थी, that was somewhere not at that pace. But we wanted कि वो सब छोड़ के ये करना शुरू कर दे. Even we wanted English medium schools, हमें लगने लगा that learning English is a better way. वो learn कर लोगे तो सब कुछ हो गया, तो you will be considered as a better learner or a better human. Whereas that is not true. Even a person learning in her own home language, mother language, can be better. But we learned, and what we did, we started talking about this, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हो गई पहली क्लास का बच्चा अंग्रेजी में बात करनी शुरू कर दे, चाहे वो अपनी लैंग्वेज में बात ना कर पाए, अंग्रेजी में बात करनी शुरू कर दे, एंड दैट टू नॉट एक्सप्रेसिंग हर आइडियाज. मुझे आज भी याद है, इवन इन क्लास 10th I was never expected to write down what is in my mind. आप जो बच्चों को किताबें जो लिखने के लिए देते हो, so we normally say these are copies. अभी हमने थोड़ा नाम बदला है, and we started saying these are notebooks. बट उससे पहले हमने कॉपीज बोलते थे, और कॉपी का मतलब क्या होता है? नकल करना. हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बच्चे के हाथ में दे रहे हैं जिसपे वो नकल करे, अपने दिमाग के आइडियाज ना लिखे, जो उसको लगता है वो ना लिखे, वो कॉपी करके दे दे. एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग, एंड राइट नाउ इवन हैपनिंग इन आवर होल सिस्टम. दैट हैपेंड एंड नाउ इट इज हैपनिंग. हमसे तो वही एक्सपेक्ट किया जाता है जिसका आंसर कहीं किसी बुक में लिखा है. नो वन इज एक्सपेक्टिंग इवन इन लैंग्वेज आल्सो कि मेरे दिमाग में चल रहा है वो लिखें. अपनी अप टू क्लास 10th इवन उसके आगे की क्लासेस में भी आई वाज एक्सपेक्टेड ऐसे लिखो, एंड राइट एसे ऑन काउ, राइट एन एसे ऑन समथिंग. एंड वो ऐसे कौन सा होता था? वो ऐसे जो बुक में कहीं लिखा हुआ है. ऐसे की एक किताब प्रिंट कर दी किसी ने, उसी में से रटो एंड रिप्रोड्यूस कर दो. कभी मुझे ये नहीं कहा राइट एन एसे ऑन योर काउ, और मेरी लाइन की मेरे ऐसे का सिंपली पहली लाइन होती इन माई हाउस देयर इज नो काउ. हो गया ऐसे मेरा पूरा. या फिर मेरी लाइन होती कि मेरी काउ जो है वो ब्लैक कलर की है, जबकि और शायद बुक में व्हाइट कलर की लिखी होती, या बुक में लिखा होता कि व्हाइट और ब्लैक कलर की होती है, बट मेरी काउ तो है ही ब्लैक कलर की. मैं व्हाइट की क्यों लिखता? क्योंकि मेरी काउ पर ऐसे लिखना है. मेरी काउ ने पिछले कई दिनों से दूध नहीं दिया, तो मैं नहीं लिखता कि दूध देती है, बट वो जो बुक वाली काउ है वो तो देती है. सो आई वाज नेवर एक्सपेक्टेड टू राइट व्हाट इज इन माय माइंड. वो लिखने का तो मौका ही नहीं मिला मुझे. सो इसीलिए हमारी डेवलपमेंट वैसी हो नहीं पाई, एंड आवर होल जितने भी हमने पॉलिसीज की बात की वो हमारी उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे पाई. टुडे इवन वी हैव चिल्ड्रन सिटिंग इन डिफरेंट क्लासेस विद वेरी वेरी लो लेवल ऑफ लर्निंग. अल्टीमेटली क्लास के तो बहुत ही लो लेवल पर बच्चे होते हैं. क्लास लेवल पे तो कभी बच्चे आते ही नहीं है. क्लास 5 में 5 के लेवल के बच्चे जो क्लास 5 को लर्न कर सके कि नहीं होते. वो कोई क्लास 1 के लेवल का है, कोई क्लास 2 का, कोई क्लास 3 का, कोई क्लास 4 का. क्लास 5 के तो बड़े छोटे से बच्चे होते हैं स्कूल में बैठे हुए क्लास में. तो क्या करें उन बच्चों का जो क्लास 4 के लेवल पर हैं लेकिन बैठे हैं क्लास 5 में, बैठे हैं क्लास 6 में. उनके साथ तो फिर थोड़ा जस्टिस हो सकता है क्योंकि 1 ही साल का लर्निंग गैप था, 2 साल का लर्निंग गैप है. वो बच्चा जो 3-4 साल के लर्निंग गैप के साथ बैठा है, हाउ कैन वी डू जस्टिस विद दैट चाइल्ड? सो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इट इज एसेंशियल कि हम जो हमारी पॉलिसीज में पहले से बहुत पहले से आया हम उसको और आगे लेकर चलें और उसके ऊपर थोड़ा सीरियसली काम करें, सोसाइटी की एस्पिरेशंस को बदलें और तभी ये काम होगा. आप ये देखते हैं कि जितनी पॉलिसीज पहले भी बनी हैं उन्होंने सबने ही दे ऑल हैव एम्फेसाइज्ड ऑन
the early language literacy and numeracy skills very seriously. हमने जैसा कहा कि शुरू में 3 आवर्स की बात की, लेकिन वो 3 आवर्स की सिर्फ 3 आवर की डेवलपमेंट नहीं थी, तो वो कहीं होना चाहिए था कि हम उसको थोड़ा साइडलाइन करते और बच्चे की जो अर्ली लर्निंग है उसमें फोकस किया जाना चाहिए। जो बच्चे की साइकोमोटर और बच्चे की अफेक्टिव डोमेन की जो लर्निंग है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए था। हम कोग्निटिव डोमेन पे ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं। सो यू ऑल मे हैव स्टडीड व्हेन वी टॉक अबाउट दीज 3 लर्निंग डोमेन्स, जिसमें कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन की आती हैं। ये तीनों एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ती हैं एंड आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं बढ़ती, इंटीग्रेटेड फॉर्म में बढ़ती हैं। कोग्निटिव के साथ साथ साइकोमोटर भी होता है। जब साइकोमोटर है तो कोग्निटिव भी होता है। व्हेन अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड, तो ऐसा नहीं दिमाग को बंद करके कहीं रख देता है, कोग्निटिव पार्ट को बंद कर देता है और सिर्फ जो उसका बॉडी की डेवलपमेंट का पार्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, उसी को रखता है। ऐसा नहीं है, वो साथ में ब्रेन भी काम कर रहा होता है। शायद वो पीछे की क्लास में मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है वो उसको वहां ध्यान रहता है, साइंस में क्या पढ़ा है वो शायद वहां ध्यान रखता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं इंटीग्रेटेड फॉर्म में होनी चाहिए थी, विच विल समवेयर लेफ्ट। मैं आपसे 1986 की पॉलिसी की बात करता था, पूरा एम्फेसिस 3 आवर्स पे आ गया, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी, अरिथमेटिक। बाकी की चीजें हमने छोड़नी शुरू कर दी। इवन हमने अब बात करनी शुरू की लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी नए आइसोलेशन में नहीं है। अगर आप बात करते हैं कि बच्चे की तीनों जो डोमेन है लर्निंग के, दीज आर टू बी डेवलप्ड simultaneously and we have to provide appropriate opportunities to children to develop in all these areas। तो इसमें शायद कोग्निटिव को थोड़ा पीछे रखा जा सकता है, क्योंकि कोग्निटिव डेवलपमेंट तो होती रहेगी अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ। हमें ज़्यादा जो जोर देना था वो अफेक्टिव डोमेन पर देना था। आज का बच्चा इमोशनली बहुत वीक है। आज का बच्चा, हम उसको उसकी जो कंसर्न्स हैं उससे, लाइफ से रिलेटेड, उसकी वैल्यू से रिलेटेड, उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसकी कंट्री से रिलेटेड, उन कंसर्न्स को मैं पीजी के बच्चों में नहीं देख पा रहा हूँ। मैं एक सिटीजन बन जाने के बाद नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अफेक्टिव डोमेन की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो हुई नहीं उस तरह से। कहीं वो एप्रिसिएशन आया ही नहीं। हमें आज अलग से बात करनी पड़ी कि आर्ट एंड एस्थेटिक सिखाओ बच्चों को और साथ में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करो। In my opinion, art and aesthetic is an essential part of our day-to-day life। अलग से डेवलप करने वाली चीज ही नहीं है। जिसको कुछ नहीं सिखाया जाता, आप उसको कुछ नहीं सिखाते, वो बच्चा भी पेड़ पौधों को, पक्षियों को अप्रिशिएट करना सीखता है। ऐसा थोड़ी है कि वो अप्रिशिएट करता नहीं है। वो आर्ट एंड एस्थेटिक ही है। हर आदमी एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति उसका अप्रिशिएटर हो, उसमें वो एस्थेटिक सेंस हो, ये जरूरी है। और ये जरूरी कैसे आएगा? जब हम इसको अपना अफेक्टिव डोमेन का पार्ट बनाएंगे। लेकिन हमने तो कोग्निटिव पर जोर देना शुरू कर दिया। 3 साल का बच्चा जब स्कूल में जाना शुरू हो गया, हमने उसकी सिस्टमेटिक लर्निंग की बात शुरू कर दी। नंबर सिखा दो, अल्फाबेट सिखा दो, पढ़ना सिखा दो, लिखना सिखा दो, बस हो गया, लर्निंग खत्म। वो साइकोमोटर हो रहा है, फिजिकली डेवलप हो रहा है कि नहीं? आज हमें स्पेशली फिजिकल एजुकेशन और इस तरह के सब्जेक्ट की बात करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमने वो अच्छे से होना चाहिए था, बट बच्चे की वो डेली लाइफ का रूटीन का पार्ट बनना चाहिए था। एक बार अगर वो 5 साल की एजुकेशन में, जैसा हम कहते हैं प्राइमरी तक की अगर 5 साल की थी, अभी 3 साल और पीछे के जोड़ लें, अगर 8 साल की एजुकेशन में हमने ये बच्चे में हैबिट डाल दी कि वो फिजिकली उसको अपने आप से ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो चीजों का अप्रिशिएट करने की तरफ को जा रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अपने तरीके बनाने की तरफ को जा रहा है, वो ज्यादा क्रिएटिव और क्रिटिकल हो रहा है रादर देन क्रैमिंग समथिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। जिस दिन वो क्रिटिकल हो जाएगा उस दिन नई चीजें बनाएगा, अपनी क्रिएट करेगा। लेकिन हम आज भी बड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग सम आइडिया के 2021 में India has now again decided to participate in PISA, Program for International Student Assessment। और इस असेसमेंट के लिए हमने 10वीं और 12वीं 10वीं के बच्चों को जो 14-15 साल की उम्र थे, उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। की जाती हैं, वो किसी एक ट्रेनिंग से नहीं आ सकते, वो लाइफ की एक्सपीरियंस से, लाइफ का पार्ट बनाने से आती हैं।
मुझे क्लास 1, मुझे प्री स्कूल के करिकुलम में उन चीजों को डालना पड़ेगा, और ये बच्चा जब 10 साल बाद पहुंचेगा, 14-15 साल का होगा, तब वो परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएगा। लेकिन हम आज भी रॉन्ग डायरेक्शन में, हमें लगता है कि कुछ ट्रेनिंग से ये सारी चीजें लर्न की जा सकती हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने पीछे कुछ दिन पहले, आज से 3-4 साल पहले, एक आइडिया निकाला था कि जी 15 दिन में बच्चे को रीडिंग सिखा देंगे और बच्चे को ये कोर्स करेंगे, वो करेंगे, स्कूल में बुलाएंगे, उनको स्टोरी पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। क्या 15 दिन में रीडिंग डेवलप हो सकती है? नॉट एट ऑल। तो ये समझ नहीं है सिस्टम की, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट एनीवेज ये समझना जरूरी था। 1986 की पॉलिसी में जिनके ऊपर काम किया गया था और जिनको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, वो राइट सेंस में अप्लाई नहीं हुई, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। 92 में नहीं हुई, 2005 में बड़ा डिटेल में इस पर बात हुई जब हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की। बट इवन देन इट हैज नॉट टेकन दैट प्लेस एज इट शुड टेक। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की एस्पिरेशंस को नहीं बदल पाए। तो आज भी नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है विद होल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम। मैंने जैसा कहा कि 1968 में कमीशन ने, 86 की पॉलिसी ने, 92 के इसके रिवीजन ने प्राइमेसी की बात की थी कि अर्ली मैथमेटिक्स और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ये तब से ही समझना शुरू कर दिया था हमने, और हमें पता था कि अगर इनके ऊपर जोर देंगे, लैंग्वेज पर जोर देंगे, तो आगे की लर्निंग ठीक होगी। आज भी हम कहते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम अलग से पढ़ा दो बच्चे को, वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराओ। अगर लैंग्वेज अच्छे से पढ़ ली ना, तो वर्ड प्रॉब्लम की अलग से प्रैक्टिस नहीं करानी पड़ेगी। मोर ओवर, मैं जैसा हम कहता हूं कि हम ज्यादा जोर किस पर दे रहे होते हैं, 5+7 सिखाओ बच्चे को, जबकि लाइफ में 5+7 कभी नहीं आएगा, 22+37 कभी नहीं आएगा। लाइफ में क्या आएगा? एक कॉन्टेक्स्ट जिसमें ये चीजें ये करना होगा मुझे। एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसमें मुझे इसको यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। There are 5 apples in a basket, 7 more apples in another basket. How many total apples are there in both the baskets? So मुझे 5 एप्पल और 7 एप्पल ऐड करना है। 5 और 7 तो मुझे उसको डिकोड करना और फिर जाके आंसर लिखना। लेकिन हमने लाइफ में पहले इसको ले लिया। अगर मैंने शुरू ही यहाँ से किया होता तो अलग से वर्ड प्रॉब्लम को नहीं लेना पड़ता। इसीलिए मैं कहता हूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट साथ के साथ होनी चाहिए हर टर्मिनोलॉजी की। मुझे आज भी न्यूमरेसी की जब मैं बात करता हूँ तो नंबर को साइड में छोड़कर नंबर सेंस डेवलप करने पर ज्यादा जोर होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा इसके आगे बताऊंगा व्हाट डू वी मीन बाय नंबर सेंस एंड नंबरनेस। देन डिस्करेज द अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ 3 R's। हमने जो 3 साल के बच्चे में शुरू कर दिया उसको शायद 5 साल की उम्र में शुरू करना चाहिए था, जब क्लास 1 में बच्चा आता है। इंस्टेड ऑफ दीज 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसको थोड़ा साइड में रखें। बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे की मेंटल ग्रोथ, बच्चे का मेंटल बैलेंस, इनके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देने की जरूरत है जहाँ फिजिकली और मेंटली ग्रो करे, अपनी सोसाइटी, अपने पीयर, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर के साथ साथ। जबकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हम सिर्फ 3 R's पर जोर दे रहे हैं। तो ये दोबारा देखने की जरूरत है। इस पॉलिसी में भी बात की गई है, बट कितना इम्प्लीमेंट होगा इट्स अ बिग चैलेंज। और मेरी जो समझ है, ये हमारी कंट्री में जो भी चेंज लाने की जरूरत होगी, उस चेंज के लिए 3 लेवल पर चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। और वो 3 में से इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो पॉलिटिकल है। एक पॉलिटिकल विल बनानी पड़ेगी। पॉलिसी में लिख देने से पॉलिटिकल विल नहीं बनती। मैं जैसा कह रहा हूँ 1968 का कमीशन जो गवर्नमेंट ने बनाया था, उसमें जो रिकमेंडेशन हुई थी, 68 में कह दिया था दैट देयर शुड बी कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 86 की पॉलिसी में भी कहा गया देयर शुड बी CCE। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जहाँ प्रेशर ना हो बच्चे पे असेसमेंट का, लेकिन हमने फिर एग्जामिनेशन को सुप्रीम रखा। 92 में भी यही कहा गया, 2005 में भी यही कहा गया कि लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेटिक विल नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। दूसरा जो चेंज है दैट शुड बी फ्रॉम द एजुकेशनिस्ट साइड। एजुकेशन के लोग जो इसमें एंगेज्ड हैं, टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स, टीचर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सब की। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पार्ट है दैट इज कम्युनिटी, पेरेंट्स, सोसाइटी। जब तक ये 3 चीजें एक साथ नहीं बदलेंगी, वी कैन नॉट फोरसी द चेंजेस। जितना भी पॉलिसी में लिख लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। एंड आने वाले 10-15 साल के बाद जब हम दोबारा रिवाइज करेंगे पॉलिसी को, तो फिर हमें यही दिखने लगेगा दैट वी आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट वी वांटेड। हम तो ये 68 के बाद तो देख लीजिए, 32 और 20, 52 ईयर्स हो गए हैं। 52 ईयर्स, 68 का कमीशन था पहला। 52 ईयर्स में आप बच्चे की कंटिन्यूअस असेसमेंट में कहाँ पहुंचे हो?
आज भी आप असेसमेंट को एक अलग से करने वाले पार्ट की तरह देखते हो। आज भी आप एक एग्जाम के बिना आपको समझ ही नहीं आता कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है या कितना सीखा। हाँ, हर साल में एग्जाम करना ही है, साल में एक बार या साल में कई बार। क्यों? क्या टीचर एक अच्छा सोर्स नहीं है ये पता करने का वेदर चाइल्ड इज लर्निंग और नॉट, व्हाट लर्निंग गैप्स आर देयर एंड हाउ दीज गैप्स आर टू बी एड्रेस्ड? A teacher has to do, school education system has to do, no one else has not to do anything with this। ये सोसाइटी को लेना देना नहीं है 8वीं क्लास तक किस तरह की असेसमेंट हो रही है, लेकिन हम सोसाइटी को दिखाने के लिए असेसमेंट कर रहे होते हैं। हमें सिस्टम ने, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने दिखाना होता है सोसाइटी को कि हम इतना अचीव कर गए। हमारा पहले लिटरेसी रेट ये था, अब लिटरेसी रेट ये हो गया, चाहे एक्चुअल में कुछ आता है बच्चों के, चाहे नहीं आता है। सो कहीं ना कहीं इन चीजों को दोबारा देखने की जरूरत है। एंड वी हैव एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दी बेटर कंट्रीज हु हैव अचीव्ड सम बेटर परफॉर्मेंस लेवल्स एंड दोज आर लाइक फिनलैंड। मैं फिनलैंड के एग्जांपल को ये नहीं कहता कि इन टोटो और एज सच दिस कैन बी अप्लाइड टू आवर कंट्री, बट दैट इज एन एक्सपीरियंस, ए सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। तो उससे कुछ तो लर्निंग हमारी हो सकती है ना, कि उन्होंने कैसे शुरू किया था। उनके यहाँ शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थी जो हमारी कंट्री में है, उनके यहाँ शायद ओवरबर्डन्ड, ओवर पॉपुलेटेड स्कूल्स नहीं थे जो हमारी कंट्री में है, उनके यहाँ शायद लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टीचर्स, मैं एप्रोप्रिएट टीचर्स से कहता हूँ कि वेल ट्रेन्ड, वेल मोटिवेटेड, वेल एटीट्यूडनली चेंज टीचर्स वहाँ ज्यादा है, हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ मॉनिटरिंग और मेंटरिंग का सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि सिस्टम छोटा है, हमारे यहाँ मॉनिटरिंग और मेंटरिंग बहुत वीक है। सो ये सारी चीजें ध्यान में देखते हुए हम कह सकते हैं कि वी हैव टू मेक कंसर्टेड एफर्ट्स। प्रीवियस पॉलिसी जो कहा उसमें जब तक हम पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक और साथ में मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो ब्यूरोक्रेटिक है और तीसरा जो सोसाइटी के चेंजेस है। फर्स्ट क्लास के बच्चे से एक्सपेक्टेशन है माँ बाप की कि इसको IITN बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है। फर्स्ट क्लास के बच्चे से, उसको तो खुद को नहीं पता मुझे लाइफ में क्या बनना है। शायद 10वीं पास करने पर भी बच्चे को पता नहीं होता कि मेरी उसकी लाइफ में इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या उसकी एबिलिटीज है, किस डायरेक्शन में उसमें चेंज आ रहा है। हमने आपके यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हुआ एंड दैट वाज ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड दैट गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो हमने आइडेंटिफिकेशन किया हमने नर्चरिंग के लिए क्या करते हैं, एंड दैट गिफ्टेड चाइल्ड का भी नर्चरिंग के लिए वी कैन नॉट हैव एनी प्रोग्राम इन आइसोलेशन कि एक स्कूल खोल दूं। चाइना ने कुछ साल पहले तक, आज से 30-40 साल पहले तक यही करते थे। एक 3 साल की बच्ची को आइडेंटिफाई कर लिया, 4 साल की, कि इसको जिम्नास्ट बनाना है और उसको जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। बाकी उसके जो डोमेन्स थे ब्लॉक कर दिए। इसको कोग्निटिव की जरूरत नहीं है, इसको अफेक्टिव की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग यही दो। दिन में 10 घंटे 15 घंटे उसकी स्कूलिंग बनती, उसको कॉमन लर्निंग, कॉमन नॉलेज की भी नहीं दे रहे थे उसको। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, दे हैव डेवलप्ड लॉपसाइडेड डेवलप्ड इंडिविजुअल्स। एक एरिया में डेवलप कर दिए, बाकी सब में 0 या नेगेटिव हो गया, नेगेटिव दिखने लगा। इसलिए अब हमने ये सोचा कि इसको ओवरऑल करने की जरूरत है, एक सिस्टमेटिक मैनर में चलें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की हो, ना कि वन साइडेड। सो ये करना चाहिए हमारे पूरी सोसाइटी को एंड आई होप हम इस पर काम करेंगे। दिस नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज वेरी क्लियरली मेंशन्ड, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉम्पिटेंसीज की बात करनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अब जुड़ गया, जो पीछे कभी बात उतना ज्यादा डिटेल में किया नहीं गया था। हमने अगर न्यूमेरेसी की बात की थी तो हमें तब भी, या लैंग्वेज की बात की थी तो हमें ना कंटेंट दिखाई दे रहा था, किसी एक किताब में लिखा हुआ कंटेंट, किसी सिलेबस में लिखा हुआ कंटेंट। लेकिन अब न्यूमेरेसी, अब हमने स्किल्स की बात शुरू की, अब कॉम्पिटेंसीज की बात शुरू की है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको 1950 पता करना है तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। 1950 कितना होता है, 1950 तक पहुंचते कैसे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। एंड I should have n number of different strategies with me. I know 20 5s are 100 and 1 5 is to be subtracted, I will get 19 5s are. So 100 minus 5 तो 95 होता है। So 19 5s are 95 है। मेरे पास एक क्या, I can have n number of different strategies to find out what is 19 5s are. So now it is not important कि पहाड़ों को रट लो,
टेबल्स को क्रैम करो और रिप्रोड्यूस कर दो. इट इज इंपॉर्टेंट आई शुड हैव बेसिक स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज विद मी एंड दोज कंटेक्चुअल एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज. वो मैंने एक और जो गड़बड़ हो गई पूरे सिस्टम में है ना, हर चीज रेडीमेड चाहिए. जिस दिन ये बात आनी शुरू हुई दैट मेंटल मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिसकी मैं भी ये बात कर रहा हूँ, इसकी भी किताबें लिख दी गई. मेंटल मैथ के भी ट्रिक्स बता दिए गए. जब ट्रिक आप बता दे तो वो मेंटल नहीं रहता, वो मैकेनिकल हो जाता है. और यही हमारे पूरे सिस्टम में हो रहा है. हमने मेंटल के नाम पर भी ट्रिक्स लिख दिए, किताबें लिख दी, किताबों में लिख दिया ये मेंटल ट्रिक है, इसको कर लो. हमने कहीं ये नहीं बताया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है. हमने कभी उसकी बात, अगर लॉजिक समझ आ जाता तो ट्रिक की जरूरत नहीं थी, अपना ट्रिक खुद बना लेता मैं. मुझे आज भी याद है, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हैं, उनको किसी एक नंबर को 10,000 से मल्टीप्लाई करना था, 10,000 से मल्टीप्लाई करना था. एंड सरप्राइजिंगली व्हाट शी डिड, पहले एक जीरो से मल्टीप्लाई किया, सब में जीरो जीरो लगाया, फिर एक क्रॉस लगाने के बाद वंस प्लेस पे फिर जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो जीरो जीरो, और 5 टाइम्स ऐसा जीरो जीरो लगाने के बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा. वो इतनी भी अपना पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके समझ नहीं बना पाए कि जिस नंबर को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है उसके आगे 1 से लेकर और बाकी प्लेसेस तक 5 जीरोस अटैच कर दो तो भी आंसर हो सकता है. ये ट्रिक खुद से बनाना था. जब बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे स्कूल में ना, हमारे टाइम में ये पढ़ाते नहीं थे, ये पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि हमने फिर वहां थोड़े से ट्रिक्स पढ़ाए थे, इसलिए प्रॉब्लम हो गई. सो अब जरूरत है कि बच्चों को हम कॉम्पिटेंट बनाए इंस्टेड ऑफ से रोट मेमोराइज्ड कंटेंट को रख लें, क्योंकि वो तो कुछ दिनों में भूल जाना है. When I was a child of class 3, I may be remembering multiplication tables, बहुत सारे याद थे, आज याद नहीं है. And moreover, when this in the age of technology, we don't need this. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब तो मेरे पास मशीन्स हैं कैलकुलेशंस करने के लिए. मुझे तो सिर्फ ये फायदा ये देखना है कि किसी एक सिचुएशन में करना क्या है, पता लग गया तो आई कैन यूज कैलकुलेटर एंड आई कैन फाइंड इट आउट. आई कैन यूज गूगल, मैं वहां से पता लगा सकता हूँ. तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस. जो न्यू पॉलिसी, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ चीज़ों को बहुत प्राइमरली आइडेंटिफाई किया गया है कि हमें करिकुलम के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा हूँ कि किस तरह का करिकुलम चाहिए हमें कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए. क्या कंटेंट पे अभी भी जोर दें या शुड वी गिव मोर एम्फेसिस टू such curricular expectations or curricular inputs which are giving ideas for a child to develop cognitively, develop affectively and develop psychomotor. ये देखने की जरूरत है और कैसे इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो देखना जरूरी है. देन पेडागोजिकल इनोवेशंस, आज के टाइम में क्या चाहिए मुझे इनोवेशंस की इसलिए हम कह रहे हैं, इफ आई हैव ऑल टेक्नोलॉजिकल टूल्स विद मी, if I have a very good equipped classroom, if I have all parents educated and if I have only 20 children sitting in my class, तो मुझे किसी इनोवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बहुत सारी कंट्रीज में है. आई विल ओनली कॉपी दोज ऑल, मैं सब वो कॉपी कर लूंगा. फिनलैंड में यही सिचुएशन है, सिमिलर सिचुएशन मेरी कंट्री के किसी स्कूल में होगी, तो मैं उसी को कॉपी करके अप्लाई कर दूंगा. मुझे इनोवेशन की क्या जरूरत है? वहां सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ भी हो जाएगा. लेकिन मेरी क्लास में इनमें से एक चीज भी डिफरेंट है जो और जगह नहीं, तो आई हैव टू इनोवेट न्यू मेथड्स. और मुझे हो सकता है आई मे हैव एक्सपीरियंसेस वो जो यूनाइटेड स्टेट्स में या जो और जगह अच्छी में हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, उस एक्सपीरियंस को लेके मॉडिफाई करूं, मॉडिफाई करके अपने सिस्टम के लिए उसको चेंज करूं और तब उसको अप्लाई करूं, एंड उस एप्लीकेशन के बाद फिर लर्न करके उसको चेंज करूं. सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमें करना चाहिए पेडागोजिकल इनोवेशंस का, और इसके ऊपर ज़्यादा जोर देने की जरूरत है. और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को बदलें. आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट ऑल दिस. देन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, जैसा मैं कह रहा था, रिविजिटिंग असेसमेंट इंपॉर्टेंट है. हमने जैसा मैंने कहा था कि वन टाइम असेसमेंट की जरूरत ही नहीं है, करनी ही नहीं चाहिए. इवन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, इवन 10वीं क्लास के एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है कि बोर्ड का एग्जाम कर लो, क्या जरूरत है? हमें तो यही पता करना है कि बच्चा 10th क्लास तक जिन कॉम्पिटेंसीज की बात समझ रहे थे वो उसमें आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, और वो एक टीचर रूटीन टेस्टिंग से, रूटीन असेसमेंट से कर सकता है, ना कि किसी वन टाइम टेस्ट से. वन टाइम टेस्ट वो आइडिया नहीं देता. देन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इन ऑल दीज एरियाज. और वो मैं जैसे अभी हम बता रहे थे कि अगर हम प्री स्कूल और क्लास 1 और 2 के इन फाउंडेशनल ईयर्स को मिला के फाउंडेशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेशन प्री स्कूल चलाता है वो, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरी स्कूल चलाता है वो, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस
प्राइवेट प्री स्कूल चलाती हैं, प्राइवेट नर्सरी स्कूल चलाती हैं, वो इन सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जब तक नहीं होगी तब तक हम डिजायर्ड जो आउटकम्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। करिकुलम रिवैम्पिंग में जैसा हमने कहा था कि फॉर्मल सेटअप में हम अर्ली ग्रेड की लर्निंग की बात करें, जो जिसको हम स्कूल कहते हैं, सो दैट बच्चे कंफर्टेबल हों, बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप हो, ना कि प्रेशर हो। हम एग्जाम के प्रेशर की जगह बच्चे में लर्निंग का जॉय लेकर आए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इनोवेटिव और इंक्लूसिव करिकुलम बना पाए हम ऐसा करिकुलम बनाए जो इंक्लूसिव हो, जिसमें आइसोलेशन में ना बात होती हो। मैथमेटिक्स का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा लैंग्वेज से, लैंग्वेज का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है ईवीएस से। मैं आज भी पूछता हूँ, एक हमने अपर प्राइमरी के टीचर से पूछा, किसी क्लास में एक पोयम थी इन लैंग्वेज बुक। वो पोयम थी अबाउट इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण के बारे में, और उसमें काफ़ी कुछ पोएट ने लिखा था कि इन्वायरमेंट ऐसा होता है, वो इसी चीज़ से बनता है। इन्वायरमेंट में हाँ, हम जो पॉल्यूट ऐसे कर देते हैं, फिर हम उसको पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक पोएम की फॉर्म में उसने दिया था, अच्छी रिदम के साथ। जब 10 टीचर से ये पूछा गया कि इस पोएम को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, क्यों ये किस किताब में लिखी गई है, टीचर ने 10 उद्देश्य पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित गिना दिए। बच्चा पर्यावरण के बारे में जागरूक होगा, बच्चा पर्यावरण के पॉल्यूशन को कम करने के लिए रास्ते ढूंढ पाएगा, ये करेगा वो करेगा, सब कर दिया। लेकिन कहीं भी लैंग्वेज की एक भी स्किल की बात नहीं की। ये तो लैंग्वेज की किताब में दी थी। अगर सिर्फ पर्यावरण का ही उद्देश्य होता तो ये शायद पर्यावरण की किताब में होती, पर्यावरण अध्ययन की किताब में होती, किसी और किताब में, विज्ञान की किताब में दी जाती ये पोयम, ना कि ये भाषा की किताब में। भाषा में देने का मतलब भाषा की कॉम्पिटेंसीज भी आएंगी। टीचर ने समझ ही नहीं बना पाए कि इसमें भाषा की कॉम्पिटेंसीज के साथ साथ किसी भी भाषा को सिखाने के लिए किसी कंटेंट की, किसी मीडियम की जरूरत होती है, तो वो मीडियम था ये तो। लेकिन हमने मीडियम को प्राइमेसी दे दी और उसको हमने छोड़ दिया। तो ये समझ बनाना, ये इंक्लूसिव करिकुलम कैसे बनता है, कैसा होगा, इसको समझने की जरूरत होगी। डेवलपमेंट ऑफ एज एंड डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स। हम ऐसे लर्निंग आउटकम्स को बनाएं जो हर बच्चे के लेवल, उस एज में वो अचीवेबल हो, मेजरेबल हो, हम उनको मेजर कर सकें, और वो टीचर्स और सिस्टम की हेल्प से बच्चे उसको कर लें। करिकुलम में जैसे बात किया गया था, डेवलपमेंट ऑफ कंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम बड़ा इंपॉर्टेंट इस बार ये बात की गई है कि एक ही करिकुलम सबके लिए काम नहीं करेगा। ये करिकुलम इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। तो अब क्या बात होगी, देखिए कि कोई भी करिकुलम तो बनेगा तो कॉमन ही। एनसीईआरटी ने बना दिया तो वो तो पूरी कंट्री के लिए बनाया, स्टेट्स उसमें माइनर मॉडिफिकेशन करके स्टेट लेवल पे बना देंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो चांसेस ही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट का करिकुलम कुछ बन सके, और स्कूल का तो बिल्कुल ही चांस नहीं है, और बच्चे का तो बिल्कुल ही करिकुलम कभी नहीं बनेगा। हमारे देश में कभी चांसेस ही नहीं है। तो ये किसको करना है? टीचर हैज टू कंटेक्चुअलाइज। जो आउटलाइन ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स की बात की जाती है नेशनल लेवल के करिकुलम में, स्टेट लेवल के करिकुलम में, उनको टीचर कैसे क्लासरूम में कंटेक्चुअलाइज करे, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और वो डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि हर बच्चे का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। देन कंटिन्यूम इन प्री एंड प्राइमरी ग्रेड्स करिकुलम। अब हम आइसोलेशन में देखने की जरूरत नहीं है, जैसा अभी कहा गया है कि पूरा जो सिस्टम है दैट इज 5+3+3+4। सो 5 years ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग की गई है, जिसमें स्कूल में आने से पहले के 3 साल हैं, फ्रॉम एज 3 years टू क्लास और 1-2 मिला के अप टू 8 years। तो ये जो 5 साल की लर्निंग है, इसको एक कंटिन्यूम में देखने की जरूरत है, ना कि आइसोलेशन में। इवन मेरी जो आज की जो सिचुएशन है इन आवर कंट्री, दैट इज मेरे पास जो आंगनवाड़ी जो है वो सिर्फ 5 साल की उम्र तक के बच्चे के साथ काम करते हैं। जैसे बच्चे की उम्र स्कूल जाने वाली होती है, पहली क्लास की एडमिशन की, तो उसको स्कूल में भेजा जाता है, तो वो आंगनवाड़ी का काम खत्म। लेकिन आंगनवाड़ी ने जो किया वो स्कूल से कोई रिलेशन ही नहीं रख रहा है। बच्चे जो क्लास 1 में पढ़ना था उसका कोई रिलेशन प्री स्कूल के साथ देखा नहीं गया। तो वो एक ऐसा करिकुलम बनाए। इवन जो प्राइवेट नर्सरी, आइसोलेटेड नर्सरी और प्री स्कूल चल रहे हैं, वो कैसे इनको देखते हैं। प्री प्राइमरी, प्राइमरी के साथ जुड़ा हुआ प्री प्राइमरी कैसे इसको लेके चल रहा है। तो ऐसे करिकुलम की जरूरत है जो कंटिन्यूम में दिखे। 3 से 8 साल तक के बच्चे के लिए एक करिकुलम बने, अब वो बच्चा कहीं पे भी हो जाए, लेकिन जब करिकुलम एक है, कॉम्पिटेंसीज एक है, तो जैसे जैसे बच्चा हायर लेवल पर जाएगा वैसे वैसे प्रायर लर्निंग को वो एसोसिएट करके नई लर्निंग को डेवलप करेगा। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज
रिसोर्स मटेरियल। अब एक से तो एक बुक से काम नहीं होने वाला है, और हमने जब ये एक बुक बनाई तो एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, हमने बुक को ही सिलेबस और करिकुलम समझ लिया, बुक को खत्म करना अपना मैंडेट समझ लिया। पेरेंट्स को भी लगा ये बुक करा देंगे तो क्लास 1 के इसकी कॉम्पिटेंसी पूरी हो जाएंगी, ये बुक को 10 बार इसके क्वेश्चंस कर लेगा तो हो जाएगा, ये बुक में तो लिखा ही नहीं है इसलिए आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये जो समझ थी एक बुक को करिकुलम से जोड़ने की, वो समझने की जरूरत है कि बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग, नॉट द रिसोर्स। और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं जिनमें आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंटली दिख रहे हैं, उनको कैसे हम एनहांस करें और उनको कैसे लेकर आगे चलें और उनका कैसे यूज करें फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स। देन डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट विच इज पार्ट ऑफ दिस, और ये वो कंटेक्चुअलाइज्ड ई कंटेंट हो जो टीचर बना पाए, बच्चे के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना पाए। मोर स्पेस फॉर चिल्ड्रन इन द करिकुलम, ये वन वे ना बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है, बस कोई मतलब नहीं है क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, वो किसने डिसाइड कर लिया कि इस बच्चे को इतना पढ़ना ही था, नहीं है इंटरेस्ट। हमने कहीं भी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात की, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की बात तो हुई नहीं, इवन चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग की बात भी नहीं हम कर पाए। हम तो अभी भी ग्रुप लर्निंग की और बहुत सारी इन चीजों की बात करते हैं। तो समवेयर करिकुलम ऐसा डेवलप किया जाए जो जिसमें बच्चे की जो एटमॉस्फेयर है, जो लर्निंग स्टाइल है, जो बच्चे का प्रायर लर्निंग है, इन सबको प्राइमेसी मिले, ऐसा करिकुलम बनाने की जरूरत है। करिकुलम फॉर फाउंडेशनल मैथमेटिकल स्किल्स की जो हम बात करते हैं, अब इसमें प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम सीधे नंबर पर ना जाकर प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स को पहले काम करें, ये उसमें होना चाहिए, नो डाउट। अभी जो लर्निंग आउटकम्स लिखे जा रहे हैं वो इन्हीं के अराउंड लिखे जा रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स, इन स्किल्स के अराउंड, कि ये प्री नंबर स्किल्स कौन सी हैं, कैसे डेवलप होती हैं, बच्चे को कौन सा एटमॉस्फेयर दें, बच्चे के साथ कौन सी एक्टिविटीज करें विद इन द स्कूल, बच्चे को कौन सी असाइनमेंट स्कूल के बाहर की दी जाए, घर की दी जाए, जिससे बच्चा कंटिन्यूसली इन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करे। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा समझना जरूरी है। आज भी आप प्राइमरी स्कूल के टीचर से बातचीत कर लें, और मैं आज भी आपको कहता हूँ 10 में से 9 टीचर आपको ये नहीं बता पाएंगे कि पहली क्लास की मैथमेटिक्स की किताब में पहले 10 पेजेस 20 पेजेस तो बहुत सारे उन आइडियाज पर हैं जो या तो पोजिशनल है, वोकैबुलरी है, या वो स्पेशल साइज से रिलेटेड वोकैबुलरी है, शेप से रिलेटेड वोकैबुलरी है, बता ही नहीं पाएंगे। हम बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा ये कहते हैं, ये क्या है, ये साइज से रिलेटेड है। इसकी बहुत सारा आइडिया दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, मैथमेटिक्स में क्या लेना देना है इसका, या नंबर पढ़ने से पहले इसकी क्या जरूरत है, टीचर अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते, बस क्योंकि किताब में लिख दिया इसलिए करवाना है। आप पोजिशनल करते हो, इन, आउट, अबव, बिलो, राइट, लेफ्ट, ये सारी चीजें हम कराते हैं, लेकिन ये क्यों करते हैं, इसका मैथमेटिक्स की लर्निंग से, पर्टिकुलरली नंबर्स की लर्निंग से क्या लेना देना है, क्या जरूरी है, या इसके बिना भी काम चल सकेगा। अगर इसके बिना काम चल सके तो स्पाइरली अरेंज्ड होता, फिर शुरू में क्यों रखा जाता है कि पहले 3 महीने इसी के ऊपर काम करो या प्री स्कूल में इसी को। तो ये समझ बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्ले बेस्ड लर्निंग विद डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टिव साइकोमोटर एंड कोग्निटिव एबिलिटीज, ना कि सिर्फ एक की कोग्निटिव की बात करें, हमें अफेक्टिव और साइकोमोटर पर ज्यादा जोर देना है। क्या होता है कि कोग्निटिव डेवलप हो जाता है, जिंदगी के बारे में वो भी सीखता है जो कभी स्कूल नहीं आया, नंबर के बारे में वो सीख ले रहा है जो कभी स्कूल नहीं आया। दिल्ली का एग्जाम्पल है, आप ट्रैफिक सिग्नल पर चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए वो भी आपको मनी में ट्रांजैक्शन करते हुए दिखेंगे। वो दे आर सेलिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स, फूल बेच रहे हैं, पहले कहते हैं 100 रुपए दे दो, शायद उनमें 100 रुपये भी कोई ना कोई बोलता होगा, फिर आपसे आप कहते हो नहीं 20 रुपए ले लो, उनको ये पता है 100 और 20 में कितना डिफरेंस होता है। या किसी ने उनको बता दिया होगा 70 से कम मत देना, 80 से कम मत देना, तो उनको 70 और 80 पता है, 70 से कम क्या क्या होता है ये पता है। तो कितना सारा मैथमेटिक्स तो नंबर तो उनको पता है, किसने सिखाया, किसी स्कूल में तो सीखे नहीं। तो अगर ये समझे कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो बिना स्कूल के भी हो सकती है। अफेक्टिव और साइकोमोटर में थोड़ा है, अगर मैं साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देता, पिछले कुछ सालों में ये शोर हुआ कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ गई, बच्चों में हेल्थ हैजार्ड्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि बच्चों की फिजिकल मूवमेंट कम हो गई, सारा दिन बैठे हैं लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने, गेम्स खेल रहे हैं, स्कूल में बैठे हैं, वो जो फिजिकल मूवमेंट है वो कम हो गया तो साइकोमोटर प्रॉब्लम शुरू हो गई। हम आज भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बना पा रहे हैं, हम ये आज भी नहीं कर पा रहे हैं कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उस फेलियर को हैंडल कर सके।
सिचुएशन, हर सिचुएशन में ये समझ सके कि हमेशा सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन हर फेलियर सक्सेस के लिए एक रास्ता जरूर खोलती है। मुझे वो नई एनकरेजमेंट मिले। हम अफेक्टिवली इतना कभी भी डेवलप होते ही नहीं है। तो ये चीजें सारी आएंगी। मेरा कंसर्न ही नहीं है सोसाइटी के बारे में, मेरा कंसर्न ही नहीं है अपने इन्वायरमेंट के बारे में। मुझे तो इंडिविजुअली अपने से मतलब है। एमबीए कर लिया, आईआईटी से बीटेक कर लिया, इसके बाद आईआईएम से एमबीए कर लिया और किसी बैंक में मैनेजर लग गया। बेवकूफ आदमी। टेक्निकल नॉलेज क्यों लिया था अगर बैंक में मैनेजर लगना था? मैनेजमेंट की स्किल क्यों ली थी अगर बैंक में मैनेजर लगना था? अपनी स्किल्स को यूज करो, कहीं ऐसी जगह जाओ। क्योंकि नौकरी और पैसा ही दिखाई दे रहा है, कहीं भी ये तो दिखाई नहीं दिया। और फिर समझने वाली बात ये, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री, जितने इंटेलिजेंट आप थे कि आप आईआईटीएन हो गए, आप वो अल्टीमेटली काम कहाँ कर रहे हो? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। लवली का मालिक कौन है? किसके नीचे काम कर रहे हो? जो लड्डू या बर्फी बनाता था। तो आपके किसके, इतना कुछ करने के बावजूद भी उस आदमी के अंडर काम करना है जो 8वीं क्लास में फेल हो गया 2 बार। तो फिर तो इस सारी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो ये सब समझने की जरूरत है। तो ये कहीं अफेक्टिव, साइकोमोटर और कोग्निटिव, इन दोनों डेवलपमेंट की साथ जरूरत है। प्लेइंग विद नंबर्स, क्योंकि हमारे चारों तरफ है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था। सो इसके लिए बच्चे की स्किल्स को डेवलप करना कि नंबर सेंस, अब ये आप समझेंगे नंबर सेंस और नंबर नेस क्या होता है। 2 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं और हम सीधी बात शुरू कर देते हैं सिंबल रिकॉग्निशन की। सिंबल पढ़ो, रिकॉग्नाइज करो और उसका मीनिंग देखो। 2 क्या होता है? एक सिंबल लिखा हुआ। 2नेस का तो मीनिंग ही नहीं पता मुझे। मैं अगर पूछूं कि 5 कितना क्या होता है तो एक सिंबल मुझे दिखाएंगे। कहीं मुझे ये नहीं बता पाएंगे कि ये वो हर ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है जिसमें उतनी चीजें हैं जितनी मेरी उंगलियां एक हाथ में होती हैं, अंगूठा मिला के। देन प्रेपरेशन फॉर मेजरमेंट। हम, क्योंकि ये जरूरी है, कितना दूर कितना पास, जैसा मैंने कहा था, बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट, अगर लॉन्ग शॉर्ट अगर इसकी बात करनी है तो ऑब्वियसली कितना बड़ा कितना छोटा। जब कितना की बात करेंगे, आई नीड नंबर्स एंड सर्टन यूनिट्स। तो ये समझ, यहाँ से प्रेपरेशन शुरू करना। बच्चा एक 3-4 का 4 साल का बच्चा ना मेजर करे, बट वो ये तो जरूर बता पाए कि ये चीज मेरे से दूर है और ये नजदीक है। डेवलपिंग आइडिया, जब वो शेप्स अराउंड दी चाइल्ड, बच्चे के आसपास की जितनी शेप्स हैं उनके बारे में बातचीत कर सके। बच्चा कहता है रोटी गोल होती है, चंद्रमा भी गोल है, सूरज भी गोल है और मेरे घर में घड़ी भी गोल है। तो वो गोल का, राउंडनेस का आइडिया डेवलप होना शुरू हो गया है। देन स्पेशियल वोकैबुलरी, जो स्पेस से रिलेटेड है, जितनी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पोजिशनल हो सकती है, जो साइज से रिलेटेड हो सकती है। तो ये सारी चीजें बच्चे लर्न करें। ये करिकुलम फाउंडेशनल मैथमेटिकल स्किल्स का पार्ट होना चाहिए और इनके साथ साथ इन सब को मिलाकर अल्टीमेटली बनती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके अपने आसपास की, अपने लेवल की। बच्चा क्रिटिकल हो सके इन सब के साथ। क्रिटिकल का मतलब कि वो हर चीज के क्यों के बारे में जानता है, जानना चाहता है, ढूंढता है, दूसरों से पता करता है। किसी क्यों के आंसर आज मिलेंगे, किसी क्यों के आंसर कल मिल जाएंगे, कोई दे देगा मुझे, और किसी क्यों के आंसर अभी तक नहीं मिलने हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। हमारे पास ये अभी भी आइडिया नहीं है कि चंद्रयान क्यों फेल हो गया। पता नहीं क्यों हो गया फेल, क्या रीजन थे। एक क्यों तो है मेरे पास, ढूंढ तो रहे हैं। अगर ना ढूंढता तो मैं दूसरा चंद्रयान बना ही नहीं पाऊंगा। तो ये 2 स्किल्स, 3 स्किल्स जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जिनको 21st सेंचुरी स्किल्स बोलते हैं, वो भी इस करिकुलम का पार्ट है, जो इन सब के साथ इंटरवीव्ड है। कि जो हम कहते हैं क्रिटिकलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी आनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए। पेडागोजी में हम जैसा कहते हैं कि मल्टी क्लासरूम प्रोसेसेस, एक ही नहीं, बच्चे के जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अराउंड घूमते हुए बहुत सारे प्रोसेसेस की बातचीत करें, वो यहाँ हमारे उसमें प्रोमिनेंटली आना चाहिए। प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन, अपने आप से एक्सप्लोर करने के आइडियाज बच्चे को दिए जाएं, स्पेस दिया जाए, उसकी अपनी थिंकिंग को हम प्रोमिनेंटली स्पेस दें। इंटरेक्शन विद टीचर्स ऑफ अदर क्लासेस, टीचर कर सके दूसरे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, मैथ्स की क्लास में क्या चल रहा है, साइंस में क्या चल रहा है, एंड सो ऑन। रिसर्चेज एंड प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ पेडागोजी फोकसिंग ऑन मैथमेटिकल स्किल्स। ऐसी रिसर्च और प्रैक्टिस की ऐसे स्ट्रेटजीज लेकर आए जो
हमें मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए डिफरेंट आइडियाज दे सके और हम उनको जो पुराने आइडिया उनके साथ नए को मिला सके। मैंने इसमें कहा था कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दोनों हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हमें काम करना चाहिए, और इसके साथ साथ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी आना चाहिए। हमें रिवाइव करने पड़ेंगे प्री सर्विस के, हमें पूरे कोर्सेज को रिवाइव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात हो रही है। आइसोलेशन में एक बीएड की या एक डीएलएड की या एक नर्सरी टीचर के प्रोग्राम की एनटीटी की बात नहीं हो रही है। सो ये शायद कुछ चेंजेस लेकर आएगा, लेकिन अगर हम इन स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए फिर किसी एग्जाम के बेसिस पर सिर्फ इसको छोड़ेंगे तो बस मार्क्स तो मिल जाएंगे, थ्योरी भी रट लेंगे, एक डिग्री भी मिल जाएगी, सीखेंगे तो तब जब हम फील्ड में जाएंगे। तो वो कम करके ऐसे बच्चे भेजें फील्ड में जो सीखे हुए हों, जिनके पास डिफरेंट आइडियाज हों, जिनको फील्ड की रियलिटीज पता हो, नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सके, थ्योरी के साथ मिला सकें। तो ये चीज़ें करने की जरूरत होगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नेशनल पॉलिसी में बात की गई है, एंड दैट इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स। हम टीचर की सपोर्ट के लिए ऐसा मटेरियल बनाएं जो उस टीचर्स को आइडिया दे सके, डिफरेंट क्लासरूम्स के, डिफरेंट सब्जेक्ट की टीचिंग के, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के, एंड सो ऑन। रिविजिटिंग असेसमेंट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसा मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस पार्ट बनाना पड़ेगा असेसमेंट को। इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, आइसोलेशन में की जाने वाली नहीं है, ये इंटीग्रेशन में होनी चाहिए। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स, एक ही टूल से नहीं होने चाहिए, बहुत सारे टूल्स के काम जो बच्चे के लेवल के हों, जो टीचर के लेवल के हों, जिसमें रूब्रिक्स हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स की असेसमेंट हैं, जिसमें कोई रिटन टेस्ट हो सकता है, ओरल क्वेश्चनिंग हो सकती है, बच्चे की ऑब्जर्वेशन ही काफी हो सकती है, बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके थ्रू पता लगा। देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स विच वी कैन यूज असेसमेंट के लिए, उनको यूज किया जाना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल असेसमेंट टूल्स बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स, हर लर्निंग आउटकम को असेस करने के लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए, उसके बेसिस पर अपना बनाएं। देन ऑडियो वीडियो टूल्स हमें जो असेसमेंट के हैं वो बनाए जाने चाहिए, जिसमें हमेशा ही एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट की बात ना करके, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली जब बात करें तो सबसे आसान यही दिखता है कि एक क्वेश्चन दे दिया, 3-4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक टिक कर लो, मशीन इवैल्यूएट करके दे देगी। आपने 1 घंटे में 20 क्वेश्चन किए, 20 में से 10 ठीक है, 10 रॉन्ग है। किसी को कुछ फिजिकली देखने की जरूरत ही नहीं है, मशीन राइट और रॉन्ग बताती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे टेस्ट की बात करनी पड़ेगी जो बच्चे की स्किल्स को, प्रोसेस को ज्यादा असेस कर सके, ना कि सिर्फ एंड प्रोडक्ट को। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मैंने शुरू में ही कहा था कि रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिटी टीचर्स इंपॉर्टेंट है। ऑन रेगुलर बेसिस जैसे जैसे रिटायर होते हैं नए टीचर आए, जैसे जैसे क्लासरूम का साइज बढ़ता है नए टीचर्स आए, और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है पूरे हमारे सिस्टम में। पैसे नहीं होंगे, पैसे होंगे तो डिप्लॉयमेंट अप्रोप्रिएट नहीं होगा। आज हम कहते हैं कि पूरी कंट्री में 5 करोड़ बच्चे हैं प्री स्कूल में, और उन 5 करोड़ बच्चों में से 10 करोड़ बच्चों के लिए अगर 30:1 या 25:1 की रेशो में बात करूं तो मेरे पास 20 लाख टीचर हैं। लेकिन 20 लाख टीचर में डिप्लॉयड कहाँ हैं? गांव के स्कूल में 4 पोस्ट के अगेंस्ट 1 आदमी काम कर रहा है। शहर के नजदीक या उसके आसपास के स्कूल में 4 पोस्ट के अगेंस्ट 6 आदमी डिप्लॉय किए गए हैं, 6 लोग डिप्लॉयड है। तो अब तो ये तो प्रॉब्लम ही है। कहने के लिए तो पूरे टीचर्स हैं, सिस्टम बोलेगा हमने तो टीचर पूरे दिए हैं, लेकिन डिप्लॉयमेंट गलत है। कई जगह टीचर ही पूरे नहीं है। टीचर हैं तो हमने एप्रोप्रिएट टीचर नहीं लगाए। साइंस की क्लासेस पढ़ाने के लिए लैंग्वेज का भी टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि साइंस का टीचर दे ही नहीं पाया, वहां आ ही नहीं पाया। हमने तो नाम के लिए 4 टीचर पूरे कर दिए, 3 लैंग्वेज के टीचर बैठे हुए, 1 मैथमेटिक्स का। अब वो साइंस का टीचर तो है ही नहीं, 6, 7, 8 को साइंस कैसे पढ़ाएगा? सोशल साइंस का टीचर है नहीं तो वो लैंग्वेज वाले को पढ़ानी पड़ती है, जबकि 3 लैंग्वेज की जगह 2 लोगों को कहीं और होना चाहिए, लेकिन वो कहीं और नहीं है। उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके पीछे इंडिविजुअल, देयर आर मेनी सच केसेस। और प्री स्कूल्स में तो ये जा रहा है, हम वो उतने टीचर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो करने की जरूरत होगी। एक बड़ा चैलेंज पूरे सिस्टम पर होगा। एश्योरिंग हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की हेल्थ अप्रोप्रिएट हो। एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड डेवलप होता है। बच्चा भूख से मर रहा होगा, बच्चा बीमार होगा, तो शायद वो कभी भी पढ़ने की तरफ को, उस जॉयफुल लर्निंग की तरफ को कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। तो उसकी हेल्थ, हाइजीन और फिजिकल ग्रोथ, और साथ में उसके जो हेल्थ इश्यूज हैं इनको साथ में लेकर चलें, उसकी जो डेवलपमेंट है उसको अप्रोप्रिएटली लेकर चलें, तो कुछ हो सकता है। तो इसको एक इंटीग्रेटेड पार्ट बनाना पड़ेगा।
सिर्फ एश्योरिंग का मतलब हो गया हम असेस करते रहे रेगुलर इंटरवल्स पे और ये करते रहे। और फिर इसमें भी ये जो डिवीजन है ना, जैसा हम कंपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे, समवेयर वी हैव टू ब्लर दीज बाउंड्रीज। हम ये कह दें हेल्थ तो एजुकेशन सिस्टम का काम नहीं है, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट को करना चाहिए। तो आते नहीं है जी, हमने तो चिट्ठियां लिख दी, क्या करें। हमारी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां से तो आते ही नहीं है डॉक्टर से बातचीत करें, वो कहते हैं जी हमारे पास तो यहाँ क्लिनिक्स में इतना ज्यादा जोर होता है कि हम कब जाएं स्कूलों में। अगर ऐसा है तो रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि मैं स्कूल में बच्चे की हेल्थ को असेस कर सकूं, उसकी जो वैक्सीनेशन है वो स्कूल में अप्रोप्रिएट हो सके, उसकी जो बॉडी की जो सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं फूड के साथ साथ, वो रिक्वायरमेंट्स वहाँ स्कूल में पूरी हो सके। तो इसको स्कूल के पार्ट के एजुकेशन सिस्टम के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। जहां बच्चा है वहां सारी चीजें बच्चे के साथ दी जाए, ना कि बच्चे को जगह जगह लेकर जाया जाए कि हेल्थ है तो हॉस्पिटल में ले जाओ, एजुकेशन है तो स्कूल में ले जाओ, अगर साइकोमोटर डेवलप करना है तो ग्राउंड में ले जाओ। एक ही जगह बच्चे के सब चीजें लेके लानी चाहिए, तब ये चीजें अप्रोप्रिएटली चलेंगी। बच्चे को मूव ना कराकर सारी फैसिलिटीज को मूव कराइए। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और स्कूल्स जब तक ओन ना करें तब तक ये काम चलेगा नहीं। सिस्टम को, सोसाइटी को ओन करने पड़ेंगे। ये हमारा स्कूल है। गवर्नमेंट का मतलब पंचायत का, गवर्नमेंट का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का, गवर्नमेंट का मतलब सोसाइटी का। ये समझें और उसको उस तरह से ग्रो कराएं। सिर्फ मैं बातें बनाने के लिए नहीं, मीडिया में बातें उठाने के लिए नहीं, देखो जी स्कूल है, क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में, टीचर ये पढ़ाता है वो पढ़ाता है। भाई गलत लग रहा है, इंप्रूव करने के लिए अपना इनपुट दीजिए, टीचर से बातचीत करिए। टीचर की कॉम्पिटेंसीज नहीं है, सिस्टम को सजेस्ट करिए कि इस टीचर को ट्रेनिंग दी जाए। आप टीचर के पास रिसोर्सेज नहीं है, उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के तरीके ढूंढे जाए एंड सो ऑन। तो वो हेल्प कहीं करनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंगेजमेंट ऑफ रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस टू सजेस्ट कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स। जब तक हम ये जो थ्योरेटिकल चेंजेस हैं वो हम अपने फील्ड से नहीं जोड़ेंगे, रिसर्चेज करेंगे तो थ्योरी और फील्ड में रिलेशनशिप दिखेगा। जब तक ये नहीं जोड़ेंगे और हम एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ को नहीं जाएंगे, किसी को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा कि ये नई चीज आई है, करके देखते हैं थोड़े दिन, और उसको रिसर्च करते हैं, उस पर देखते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है। ठीक नहीं आ रहा है, छोड़ेंगे, कुछ दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, लेकिन दैट टू नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक कुछ किया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, लर्निंग उनकी हुई नहीं, उसका तो बेचारे का साल खराब हो गया बच्चे का। तो कुछ ऐसा करें कि एक्सपेरिमेंटेशन में जो सब्जेक्ट है हमारा, उस सब्जेक्ट को ऐसे चूज करें कि उसका जो प्रॉब्लम, सब्जेक्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब्जेक्ट का टाइम खराब ना हो, और फिर भी हम रिसर्चेज कर सकें, अपने रिफॉर्म्स को एक्सपेरिमेंट कर सकें, और उनके ऊपर जो भी हमें इनको इनपुट मिलते हैं, जो कुछ भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, आउटकम आते हैं, उन आउटकम्स के बेसिस पर चेंज करें। अगर लार्जर स्केल में हो सकता है, हो गया, हमने सब कर लिया, तो हमें फिर उसको सिस्टम का पार्ट बनाएं। अब तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो मोडेलिटीज है ये मैं आपने पढ़ा हुआ है, आई विल नॉट टेक दिस एट डिटेल, बट हमें ज्यादा जो काम करना है 0 to 3 ईयर से कम्युनिटी के साथ है। पॉलिसी ने इसके ऊपर काम करने की बात की है ECC में। 3 to 6 ईयर का एक सब फ्रेम बनना चाहिए, जिसको हम प्री स्कूल कहते हैं। ये पर्टिकुलरली उनके लिए है जो स्टैंड अलोन प्री स्कूल हैं या आंगनबाड़ी है। और फिर एक 5 साल के बच्चे के लिए बाल बाटिका के रूप में भी लिया गया है कि जब पहली क्लास में आए तो उससे पहले 3 महीने की उसको इनपुट्स मिले, जहां उसको वो तैयारी मिले कि उसको जब क्लास 1 में जाना है तो किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो तैयार करके भेजें। और वहां भी एक ट्रेंड टीचर से काम हो, एज किसी वॉलंटियर से नहीं, ट्रेंड टीचर से काम हो। और 6 to 8 ईयर के लिए एक और फ्रेम, तो 3 to 8 ईयर्स के लिए एक फ्रेम जो स्कूल में होगा, और 0 to 3 का जो घर में होगा। एक पूरे फ्रेमवर्क लर्निंग आउटकम्स ये बनाने की जरूरत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर होगा। So that's all about my presentation. I hope you may have enjoyed this. Now I will be talking to you on your questions and queries. Thank you, Professor Rajput. You have very, very extensively talked about not only literacy and numeracy in a nutshell, but you actually talked about the challenges and the road ahead of us. So what we have to, how much we need to prepare ourselves, where are we lacking, and how this policy can actually make a difference in the lives of students and in education system, rather than again after 15-20 years we are talking about, yes, we are not able to achieve this. So probably very bluntly, very boldly,
you actually hit the nail at the right place, and this is what you are known for. So really appreciate this, a very honest and very crude remarks on the policy, an excellent policy making, but implementation is very important. And if we don't have a correct implementation plan, we'll fail. And this particular group, these students are the torchbearer, these are the generations who are going to be future educators, so they need to be prepared for it. So that's why it's important to actually very categorically and critically look into the issues which Professor Rajput has mentioned. We are open to questions. Students can write, audience can write their questions in chat box, but meanwhile we do have questions from the moderators. So moderators Rishabh and Sakina, could you please put the questions to Professor Rajput before we move to other questions by the audience? Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Yeah, Rishabh will take the lead. Okay. Sir, first question is, just because of passing every single kid till 8th grade examination, kids are not even focusing on studies. So how will not conducting any exam till 10th be helpful in innovative learning? Very good question. See, when we say what is the purpose of any examination or any assessment, that we have to understand. The major focus of any assessment is to find out where are the learning gaps, what are the learning outcomes, and with my strategies, if child has not learned or learned, at up to what extent he has learned, or where are the learning gaps which can be addressed immediately. So this can be done by a teacher only and continuously. Why a one-time examination? As you mentioned, without passing an examination, child is promoted to higher class. Why a child was not with the teacher for one complete year? क्यों नहीं उसको पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे में, 3 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 6 महीने में पता लगता गया कि चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग एज अप्रोप्रिएट एज ही शुड बी, तो क्यों मुझे साल के एंड में पता लगता है और मुझे फिर कंपल्शन है कि इसको तो प्रमोट करना ही करना है? तो प्रमोट करना है, लेकिन विद ऑल राइट कॉम्पिटेंसीज इन द चाइल्ड. तो ये जरूरी है कि आप उन कॉम्पिटेंसीज को तो एश्योर करें, एंड हु विल एश्योर? नॉट वन एग्जामिनेशन. इसलिए एग्जाम की कोई वैल्यू है ही नहीं स्टेज पर. आप जो कहते हैं ना एग्जाम कर लो, नाम पास भी कर लेगा, उसको कौन सा सारी कॉम्पिटेंसीज हैं? अगर मैं पास का भी 33% का लगा दूं, आप सब क्योंकि इस स्टेज पर हैं कि आप इन सब चीजों के बारे में थोड़ा और बारीकी से सोचिए. मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने जो कहा है ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, तो मुझे फॉलो मत करिए. आप मेरे व्यू पॉइंट से ओपिनियन बनाइए अपनी, और भी लोगों की व्यू पॉइंट सुनिए, अपनी एक ओपिनियन बनाइए और उसके ऊपर काम करिए. तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन है, मेरी नजर में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्पज ही नहीं है बच्चे को पास फेल करना एग्जामिनेशन का, किसी भी एग्जामिनेशन का. एग्जामिनेशन का पर्पज पर्टिकुलरली अप टू क्लास 8 ये पता करना है कि वेदर चाइल्ड इज लर्निंग एज अप्रोप्रिएटली एज ही और शी शुड बी, और या नहीं कहीं गैप है. जो गैप है तो उनको एड्रेस करना है, ना कि पास फेल करना. आपके सोचने के लिए एक छोटा पॉइंट, हम 33% मार्क्स को पासिंग मार्क्स मानते हैं. किसी भी एग्जाम में कहते हैं कि अगर इसने 33% ले लिए तो इसको आगे की क्लास में प्रमोट कर सकते हैं. व्हाई 33%? इसका मतलब पूरे करिकुलम, पूरे सिलेबस का 1/3 कर ले तो आगे की क्लास में जा सकता है. इसका मतलब 2/3 डेफिशिएंसीज के साथ तो हमने पहले ही इंश्योर कर लिया, 2/3 डेफिशिएंसी के साथ भेजेंगे, जबकि वो उतना अच्छा है नहीं कि वो जो मेरा एग्जाम 1/3 बता रहा है वो हो सकता है वो 1/4 ही हो, उसके मार्क्स एक्चुअल 25% ही होंगे, उसकी कॉम्पिटेंसीज उतनी होंगी. वो एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, उसमें 33% आ गए, अगले दिन वही एग्जाम ले लेंगे तो हो सकता है 50% हो जाए. सो एग्जाम हैज नो वैल्यू एट ऑल. ये टीचर की कंटिन्यूअस असेसमेंट ही बता पाएगी चाइल्ड इज नॉट. और फिर फेल क्यों करना है बच्चे को? फेल सिस्टम को करो. अगर बच्चे ने साल भर में वो कॉम्पिटेंसीज अचीव नहीं की जो उसको करनी चाहिए थी, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द चाइल्ड, इट इज फॉल्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज फॉल्ट ऑफ द मटेरियल. जो मैं एनसीईआरटी में बैठ के बना रहा हूँ, मैंने करिकुलम बच्चे के जॉय के लिए नहीं बनाया, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा. मैंने टीचर को ट्रेन नहीं किया, टीचर को समझ में नहीं आया, टीचर ने टाइम ही नहीं लगाया, जो इंडिविजुअलाइज करके करना चाहिए था, कंटेक्चुअलाइज करके वो नहीं लगाया. तो फॉल्ट तो इतने सारे लोगों का है, फेल इन सबको होना चाहिए था. आप कहते हो बच्चे का एग्जाम लेके फेल करो, उसी क्लास में रिटेन करो, अगली क्लास में मत भेजो जब तक ये इंश्योर ना हो जाए. तो मेरे को अधिकार नहीं है कि मैं बच्चे का 1 साल खराब कर दूं.
और एक और बात समझने की जरूरत होगी, आप 8वीं क्लास के जिसको एग्जाम ले लेकर आपने 8 तक पढ़ाया था, पहुंचाया था, जो पुराना सिस्टम होता था, वो कौन सा बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे? 10वीं क्लास के बच्चों को आज मैं फेल कर दूंगा, यही जो मैंने कहा था। आप मुझे बताइए कि अगर 20% डिस्काउंट, 10% टैक्स, विच वन विल यू लाइक टू बी गिवन फर्स्ट? डिस्काउंट पहले लोगे या टैक्स पहले लोगे? ऋषभ आप ही बताओ। और अपना माइक को अनम्यूट कर लो। ठीक है सर, 20% डिस्काउंट है एंड 10% टैक्स है। आपको इसमें 2 चॉइस मिलती है, आप पहले कौन सा लेना चाहोगे? हाँ जी, ये जी, तो डिस्काउंट मुझे 20% का मिल रहा है और 10% उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है कि टैक्स पहले लगाया जा रहा है कि बाद में लगाया जा रहा है? क्वेश्चन क्या है सर? मुझे पता, मैंने तो आपको अच्छा। ऑफर दे दिया, अब आप सोचो, डिसीजन लो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, अगर टैक्स बाद में लगाया जा रहा है तो पहले मैं डिस्काउंट लूंगा, क्योंकि डिस्काउंट जब मुझे मिल जाएगा, मान लो 100 रुपए की कोई चीज मिलती है, 20% उस पर डिस्काउंट मिलता है तो वो 80 की हो गई। जब 80 की हो गई तो उस पर मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा, ये अच्छा। मैं लूंगा। अगर मैं पहले टैक्स लगवा लेता हूँ, मान लो 10% टैक्स लगा लिया तो 110 की वो चीज हो गई और उस पर फिर डिस्काउंट मुझे फिर कम मिल पाएगा। अच्छा, आप जरा सोचिए, मैंने जो आपको कहा था कि इन दोनों में से किसको पहले चूज करना है, 8वीं क्लास तक के मैथमेटिक्स को रिकॉल करिए, आप पढ़ाते भी रहे हैं। आपने अगर पहले डिस्काउंट लिया, 100 रुपीज है, डिस्काउंट ले लिया 20%, 80, 10% टैक्स, 88, आपको कितना पे करना है? जी जी हाँ, 88 रुपीज पे करना है ना आपको उसको, उसके लिए। जी हाँ जी जी हाँ जी करते हैं। 100 रुपीज है, डिस्काउंट सॉरी टैक्स 10% है, 110, 20% डिस्काउंट 22, 110 माइनस 22 कितना होता है? 110 माइनस 22, 110 माइनस 22 हो जाएगा 80, 92, 88 सर 88 है ना? तो भाई तुम्हें तो उतना ही देना पड़ रहा है, चाहे पहले टैक्स लगवाओ चाहे पहले डिस्काउंट लो, मेरी जेब से तो उतना ही पैसा जा रहा है। नहीं, ये जस्ट एग्जांपल 10-20 का था, इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल होगा तो डिपेंड करेगा। कहीं भी होगा, कहीं भी होगा। मैंने इसलिए कहा था कि ये क्लास 10 तक का 8 तक का मैथमेटिक्स है, जहां हम ये कहते हैं कि जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट आते हैं, एक डिस्काउंट होलसेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने फिर रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कस्टमर को दिया, ये जो सक्सेसिव है किसी भी ऑर्डर में लगा दो, किसी को पहले किसी को बाद में, नेट एंड प्रोडक्ट जो है वो उतना ही आएगा। ये तो 8 क्लास पढ़ा था, तो इसमें जो टैक्स है वो नेगेटिव डिस्काउंट है। बट इवन देन, अच्छा चलो अब भी ये पता लग गया ऋषभ, अब आपकी एक्चुअल जो मैं जो अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहा था, अब जरा सोच के बताइए कि ये पैसा तो सेम ही देना पड़ेगा, बट इवन देन व्हाट यू चूज फर्स्ट? अगर अब भी मैं आपको चॉइस देता हूं तो क्या चूज करोगे पहले? तो अगर अफेक्टिव डोमेन की आप बात करते हैं तो लोग पहले डिस्काउंट ही चूज करते हैं। अरे भाई, मुझे अब देखो, अगर मैंने पैसे तो 88 ही देना पड़ रहा है, पहले मैं डिस्काउंट चूज करता हूं तो गवर्नमेंट के अकाउंट में 8 रुपए जाएंगे, 8 रुपए टैक्स। अगर मैं पहले टैक्स चूज करता हूं तो 10 रुपए जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, और गवर्नमेंट का मतलब मेरे पास आना पैसा, गवर्नमेंट का मतलब मैं और आप ही तो हैं, हम लोग, तो मुझे गवर्नमेंट के वेलफेयर में सोचना है ना। ये जो 2 रुपए का डिफरेंस आपके डिस्काउंट चूज करने से आया, वो डिस्काउंट, वो पैसा किसके जेब में जा रहा है? शॉपकीपर के। आप शॉपकीपर के इंटरेस्ट में सोचोगे या अपने गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में सोचोगे? सो ये देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कितनी सारी लर्निंग है विच वी शुड समवेयर डू। मैं 10वीं क्लास तक एग्जाम ले लेके कर क्या रहा हूं? कितनों को इतना कॉम्पिटेंट बना दिया? कितने समझ पा रहे हैं बाय वन गेट में कितना डिस्काउंट मिलता है? तो कहीं ये बनाने की जरूरत है। फॉर मी कंटिन्यूअस असेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वन टाइम एग्जामिनेशन। बंद कर दो, 12वीं में अलग पर्पज है, 12वीं में एग्जाम का कुछ पर्पज अलग है, हमें 10वीं में भी पर्पज अलग है। 10वीं में भी मैं सिस्टम को सबको असेस करना चाहता हूँ, 10 साल के एजुकेशन के बाद असेस कर लेना अलग पर्पज है उसका, और वो पब्लिक एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले किसी पब्लिक एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, स्कूल में करो, टीचर करे, कंटिन्यूसली असेस करे, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन टीचिंग स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री लेवल हु आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर? वेरी गुड। हाँ, देखिए क्या होता है, जब मैं कहता हूँ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, एक तो नॉर्मली ये कम हो गया, अब नंबर उतना ज्यादा बड़ा नहीं है जो आज से 30 इयर्स 40 इयर्स पहले था। नाउ द नंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स इज वेरी लेस है, हम कह नहीं सकते कि नहीं है, बट फर्स्ट जनरेशन लर्नर को किस फॉर्म में मैं फर्स्ट जनरेशन कह रहा हूँ?
उनके पेरेंट्स को लिखना पढ़ना नहीं आता, इसीलिए ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। वो बेसिक स्किल्स बेटर हैं उनके पास आज में। वो मोबाइल फोन हैंडल करना जानती है, चाहे लेडी यहाँ पत्थर कूट रही है बाहर बैठी, लेकिन वो नंबर्स को हैंडल करना जाती है, मोबाइल फोन को हैंडल करना जाती है, उतनी लैंग्वेज भी जानती है जिससे वो कम्युनिकेट कर पा रही है दूसरों को मैसेज भेजने में लिए, अपनी फॉर्म में जैसे ही मैसेज भेजती होगी। तो वो तो कॉम्पिटेंट तो है बहुत सारी चीजों में, सिर्फ वो नहीं आता जो हम चाहते हैं। तो मैं उसको फर्स्ट जनरेशन लर्नर बोलूँ ना, क्योंकि आज के बच्चे का एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि सिर्फ माँ बाप ही नहीं, सोसाइटी से बहुत कुछ लर्न कर रहा होता है। सो फर्स्ट जनरेशन नहीं है, बट हाँ उनके लिए करना जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, गवर्नमेंट सिस्टम सारा ही जो काम करता है वो ये समझकर करता है कि बच्चे को घर पे ये जो कोग्निटिव डोमेन की सपोर्ट है ना, वो ना भी मिले चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्कूल का काम है वो करना, वो स्कूल में ही होना चाहिए डेवलप बच्चे की। लेकिन साइकोमोटर को हर पेरेंट करा सकता है, अफेक्टिव हर पेरेंट करा सकता है, वैल्यूज की बात मैं करूं तो हर पेरेंट दे सकता है, और अपने अपने लेवल पे हर पेरेंट ही बोलता है। कोई चोर खुद भी है ना, तो भी अपने बच्चे को नहीं बोलता चोर बनना है। आप फादर चाहे ठगी करके आता हो, घर में आके बताता नहीं है, वो घर में आके बच्चों को चोरी करना बुरी बात होती है। सो फिर भी मतलब ये जो है ज्यादा कोग्निटिव के ऊपर मुझे नहीं लगता कि वो है, लेकिन ये स्कूल सिस्टम का काम है और स्कूल सिस्टम को ही फोकस करना चाहिए। वी शुड नॉट से अभी ना एक चीज पे देखने की जरूरत होगी। सोसाइटी मेरी ये बोलती है कि हम कहते हैं कि जी मैंने होमवर्क दे दिया, पेरेंट्स ना ध्यान ही नहीं देते इस बच्चे का, इस बच्चे के ऊपर टाइम नहीं लगाते, इसलिए बच्चा ये सीख नहीं पाता। भाई अगर पेरेंट्स टाइम लगाते तो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी में से आपको पैसा नहीं देते, सिस्टम को, गवर्नमेंट को, स्कूल सिस्टम को पैसा दिया उन्होंने टैक्सेस की फॉर्म में, और ये बोलकर दिया कि मेरे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट एक स्कूल जैसी संस्थान में आने पर ये आपकी जिम्मेवारी है, मैंने पैसा दे दिया अब आप करो इसको। फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दूसरे पे शिफ्ट करोगे, पेरेंट्स पे शिफ्ट करोगे तो गलत है। ये नहीं कह सकते बच्चा सीख नहीं रहा है कि उसकी पेरेंट नहीं कर रहे हैं, बच्चा अच्छा सीखेगा अगर पेरेंट्स हेल्प करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह दूं कि बेसिक भी नहीं सीख रहा है क्योंकि पेरेंट हेल्प नहीं करते, तो वो गलत है। मुझे करना ही नहीं चाहिए, पेरेंट्स पर ये एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए, ये सिस्टम की एक्सपेक्ट का काम है। सिस्टम को पैसे दे दिए पेरेंट्स ने, बेचारों ने टैक्स पे कर करके, अब फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन है बच्चे पढ़ा दे, फिर मैं स्कूल में क्या करूंगा? मुझे स्कूल में वो एटमॉस्फेयर बनाना है। मुझे स्कूल में अगर मेरे पास 20 बच्चे हैं तो 20 स्ट्रेटजीज यूज करनी है, 40 बच्चे हैं तो 40 डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ काम करना पड़ेगा। आई शुड नॉट से कि ये 3 बच्चे तो बिल्कुल सीख ही नहीं सकते। क्यों नहीं सीख सकते? कोऑपरेटिव लर्निंग में हर बच्चा सीख सकता है। आई हैव टू हैव स्ट्रेटजीज विद मी इंस्टेड ऑफ गिविंग फोकस टू, ये देखिए मेरे जितने भी आइडियाज हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकली प्रॉब्लमेटिक लगेंगे, क्योंकि आपको भी लगेगा कि ये पेरेंट्स पे ये तो सोसाइटी में चल नहीं पाएगा, स्कूल सिस्टम में चल नहीं पाएगा, बट करना यही पड़ेगा, आने वाले टाइम में यही करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर दूसरों के ऊपर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर है। व्हाट आर द प्रोविजंस इन एनईपी 2020 फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स इन द लाइट ऑफ फाउंडेशनल न्यूमरेसी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ना हर बच्चे को साथ लेके चलना, एंड द पॉलिसी हैज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट वी शुड हैव इंक्लूसिव क्लासरूम्स, and not only in foundational stage but in all stages we should have inclusive classrooms wherein the children's requirement are to be fulfilled as per their understanding, as per their context। तो वो तो लेकर चल ही रहे हैं। और अगर हमने नॉर्मली ये समझा कि स्पेशल नीड बच्चे हम 2 तरह के डिवाइड करते हैं, वन इज चिल्ड्रन हु आर हैविंग स्पेशल फिजिकल नीड्स एंड वन हु इज हैविंग स्पेशल मेंटल नीड्स। फिजिकल नीड्स में वो आते हैं जिसमें कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है, किसी भी लेवल का हो सकता है, विजुअली इम्पेयर्ड है और वो 100% इम्पेयर्ड है, कुछ पार्शियली इम्पेयर्ड है, थोड़ा बहुत एक हाथ नहीं है, एक ही हाथ है, दोनों हाथ नहीं है, ऐसी चीजें। तो वो ऑब्वियसली उनके लिए हमें बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात करनी है। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी इज मोर क्लोज टू लाइफ। ये न्यूमरेसी जितनी ज्यादा है ना, ये लाइफ के क्लोज है, और लाइफ में हर चीज हर बच्चा कर सकता है क्योंकि उसने वो सीखा होता है। तो मुझे वो करना नहीं चाहिए। मैं बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के लिए कहूं कि बच्चे को लॉन्ग जंप लगवाना, टांगे नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशन गलत होगी। लेकिन एक ही टांग के साथ बेस्ट क्या कर सकता है, 2 टांग के साथ बेस्ट क्या कर सकते हैं, उनको सबके साथ एंगेज करके वी कैन डू। न्यूमरेसी स्किल्स में एक मेंटल एबिलिटीज को लेकर आगे चलने की जरूरत है, और मेंटल को हमने क्या समझ लिया था कि वो ना नंबर्स के साथ कर सके, जिसको हम बाद में जाके कह देते हैं कि बच्चे में ये वाली प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, लेटर स्टेज पर खत्म हो जाती है।
लेकिन अगर अर्ली स्टेज पर है तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट तरह के एटमॉस्फेयर के साथ बच्चे में काम किया जाए। ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। इंक्लूसिव इसीलिए कहते हैं, बच्चे को आइसोलेट करके अलग से बिठा देने से उसकी डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होती जितना उसके और दूसरी एबिलिटीज के बच्चे के साथ बिठा के उसकी डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए इंक्लूसिव क्लासरूम सेटिंग इज कंसीडर्ड टू बी बेटर एंड मोर इम्पोर्टेंट देन इन आइसोलेशन। हाँ, कुछ एक बच्चे होंगे जिनके लिए स्पेशली मुझे काउंसलर्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम डायग्नोस्ट करेंगे कि इसके साथ प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, उस डायग्नोसिस के साथ फिर मैं स्पेशल कुछ उन बच्चों के साथ इनपुट दूं, तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज वेरी सीरियसली थॉट ऑफ हैविंग counselors in almost all the schools, but we have our problem. We are not even having enough number of primary school and preschool teachers. How can we have counselors? So that's why government has now put in counseling as an important aspect of pre-service as well as in the service teacher education program. Lot of workshops are being conducted, material is being developed जो inclusive setting में काम कर सकता है। So lot of things have been suggested in this policy कि हम इंक्लूसिव के लिए करें, जिसमें मल्टीपल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। पहले भी वो टॉकिंग ऑफ ओनली वन रिसोर्स, वन बुक, और वो बुक तो काला अक्षर जैसा लिखा है। वो तो जो बच्चे अच्छे हैं, सब तरह से फिजिकली डेवलप्ड हैं, वो नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा ये लिखा क्या है, पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए भी किताब बेकार ही है। और ऑब्वियसली जिसको दिखता नहीं है बेचारे को या कम दिखाई देता है, उसके लिए तो बिल्कुल ही बेकार हो गई। तो ये सब चीज़ों को अब ध्यान में रखते हुए, जैसे ऑडियो बुक्स बहुत सारी डेवलप हो रही हैं, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देने के लिए काम किया जा रहा है कि हम उसके ऊपर काम करें। बच्चे के लिए ऐसे किट्स की, ऐसे मैन मेड मटेरियल की बात की जाए जो बच्चे हैंडल कर सकें। जैसे नॉर्मली जो बच्चे हैंडल करते हैं वो आवाज़ वाले कम होते हैं, लेकिन एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए अगर मैं आवाज़ वाला घुंघरू लगा दिए, कुछ और आवाज़ वाला कर दिया, तो उससे वो अलग अलग कुछ लर्न करेगा। तो इस तरह की टीचिंग एड्स, इस तरह का जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इसके ऊपर भी काफ़ी काम करने के लिए इस पॉलिसी ने कहा है। सो इस अर्लियर न्यूमरेसी और फाउंडेशनल मैथमेटिकल स्किल्स के में इस पर काफ़ी जोर दिया गया है, और ये पार्ट तो हमारी डेली रूटीन पेडागोजी का बनेगा, देन ओनली वी कैन हैव इट। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन ये है, जैसा कि डिस्कशन हुआ था, आपने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जो टीचर डिप्लॉयमेंट की बात आपने की थी, बट सर देखा गया है कि अभी साल पहले मेरे गांव में तो स्कूल जो था उसमें सिंगल टीचर स्कूल था, तो वो टीचर किस तरीके से वो मैनेज नहीं पा रहा है, तो क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं एक सिंगल टीचर स्कूल के लिए कि टीचर किस तरीके से सारी क्लासेस को मैनेज कर सके? देखिए, कुछ तो एसेंशियल चीजें हैं। एक सिंगल टीचर है, अगर पूरा स्कूल में बच्चे ही 25 हैं, क्लास 1 में 10 बच्चे हैं, क्लास 2 में आके 8 हो गए हैं, और कुछ कुछ करते करते पूरे इसमें, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तो अपना मैंडेट पूरा कर दिया, 25:1 से एक टीचर देना था, दे दिया। या 2 टीचर भी हैं तो एक टीचर कहीं बाहर ड्यूटी पे ही लगा रहता है, हमेशा इलेक्शन करवा रहा है या कुछ और काम कर रहा है। बट अगर ऐसी सिचुएशन है, देन ऑब्वियसली टीचर हैज टू फाइंड आउट वेज, और उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो टीचर को लर्न करना पड़ेगा मल्टीग्रेड टीचिंग। और मल्टीग्रेड टीचिंग में एक इंपॉर्टेंट टूल होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में जहां जो हायर एबिलिटी के बच्चे हैं उनसे लोअर एबिलिटी के बच्चे सीखते हैं। नॉर्मली एक ही क्लास में, जब एक ही क्लास है उसमें ज्यादा बच्चे हैं और कुछ बच्चों ने सीख लिया, कुछ में नहीं सीखा। इसका एक साइकोलॉजिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, थ्योरेटिकल है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई चीज सिखाने लगते हैं तो जिसको वो पता है, कुछ एक ग्रुप ऐसा है जिसे पता है, जिसे वो जानकारी है, और एक वो है जिसको वो जानकारी नहीं है। आई नो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, नाउ आई एम टीचिंग इट टू द चिल्ड्रन। सो मैं उसको, हम कहते हैं पूरे इस प्रोसेस में जो पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्टिविज्म जिसकी हम बात करते हैं कि हम एक दूसरे से लर्न करते हैं, एक ये लर्निंग जो है सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, तो हम उसको एक नाम दिया गया है साइकोलॉजिकली। इस पर्सन को हम कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। ये जो MKO है ये कोई भी हो सकता है। मेरे मन में एक प्रश्न उठा, मेरे भाई के पास मैंने प्रश्न पूछा और मेरे भाई ने उसका आंसर दिया, उसको पता है, थोड़ा बहुत पता है, तो मेरे लिए वो भाई MKO हो गया। क्लासरूम में टीचर MKO होता है, जिसको पता है, जो जानकारी रखता है, और जो दूसरा जो जानकारी नहीं रखता है। अब क्या हुआ, आप अगर अकेले MKO क्लासरूम में हो एज ए टीचर, आपने 30-40 बच्चों की क्लास में पढ़ाया, जो अलग अलग मान लो मल्टीग्रेड भी बैठे हुए हैं, उसमें से 20 बच्चे
30 बच्चे, 40 में से 30 बच्चे, इवन 35 बच्चे नहीं सीख पाए अभी तक। उस लेवल पे नहीं, अलग अलग लेवल पे सारे सीखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि जीरो सारे जीरो पर होंगे। किसी ने थोड़ा कम सीखा होगा, किसी ने थोड़ा ज्यादा सीखा होगा। 5 बच्चे ऐसे हैं जो वो सीख पाए जो आप चाहते थे सीखना, 4 बच्चे मान लो जैसे हैं। तो अब क्या हो गया, नेक्स्ट सिचुएशन जो आ गई उसमें अब MKO पहले शुरू में एक ही था, अब MKO कितने हो गए, 5, 4 ये बच्चे जो सीख गए और एक वो टीचर जानता है। अब ये 5 लोग बाकी जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करेंगे। अगले एक और कोई एक्टिविटी हम करेंगे, अगर कोऑपरेटिव लर्निंग की एक्टिविटी कर दी, ग्रुप में बिठा दिया, कुछ मैंने प्रेजेंटेशन करवा लिया, कुछ और कर दिया, जो भी स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की। अब नंबर ऑफ MKOs बढ़ता जा रहा है क्लासरूम में, जो बाकियों की भी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से नहीं, अपने आप ही आ जाएगी। साथ बैठा हुआ है बच्चा, उसकी कमीज खींच कर मुझे तो बता दे क्या है इसका मीनिंग, तो बच्चा उसकी कान में समझाने लग जाता है। एज ए टीचर यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड कि भैया मेरी क्लास में जो मर्जी बोलो, आप अगर एक अच्छी बात पूछना चाहते हो किसी दूसरे से तो पूछ लो, मेरी क्लास में कोई ऐसी रोक नहीं होती है, पिटाई नहीं होगी आपकी। तो जब आप ये फ्रीडम बच्चे को पूछने की, बात करने की दे दोगे, तो बच्चे खुद से लर्न करते हैं और अपना लर्निंग एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करते हैं। एंड दैट इज द बेस्ट वे टू एड्रेस एनी मल्टी लेवल और मल्टी ग्रेड क्लास, क्योंकि टीचर नहीं सब जगह प्रेजेंट हो सकता है एट ए टाइम। जी Rishabh, do you have any more questions? Yes, ma'am, I have one. Okay, yes, Sakina, please carry. Sure, ma'am. Okay, hello, sir. हेलो। Yes, my question is, now that we all know, just a minute, sir. Now that we all know that not every kid has the same mental intelligence, so how are we going to provide foundational numeracy till the 3 years of education to every child in the same class, in which we are integrating kids without linguistic barriers and without any physical or mental wellness barriers, according to National Education Policy 2020? Well, see, as I mentioned earlier also, whatever curriculum, whatever learning outcomes have been defined, these have been defined on keeping in mind 2 aspects. Number 1, the age appropriate. Number 2, developmentally appropriate. A child of 5 years may not be developmentally developed, so mentally developed as a child of say 3 years is developed. This depends on the atmosphere the child is getting. So we cannot say that every child will be at same level of learning. But when we are talking of learning outcomes, say for example, classification is one of the learning outcomes. Child should be able to classify object on the basis of colors. Child should be able to classify objects on the basis of shape. This whole learning child is bringing from, every child is bringing, maybe with some lesser experience and with different experiences. Some child is bringing experiences of different objects, other child is bringing different objects, but they certainly are coming up with this. So that's why we are not focusing more on now the content, we are focusing more on the competencies. Let's say for example, when I say number sense, so what do you mean by number sense? When child knows 5, these are 5 objects, but child also knows that 5 is 1 less than 6, 5 is 1 more than 4, 5 can also be made with 2 and 3, 2 objects and 3 objects, and so on. There are a number of ways. So looking 5 in different manners, looking 5 at different places, this is what we call as 5-ness, number-ness of something. So looking at different places. So that certainly every child is bringing. So whatever competencies have been developed, these you may consider as the lowest level competencies, but in every competence, there are different levels. We expect every child should achieve at least lowest level of that competence, and that every child can achieve, that is scientifically proved, irrespective of mental and physical disabilities or impairedness. But child can achieve. That's why these have been fixed. We are not fixing that some children can do and some cannot. That somewhere may be different, that teacher is not having strategies to address all the children, but otherwise whatever competencies and skills have been fixed, those all are fixed, keeping in view that every child should be able to do it. Moreover, this national policy, new policy on education has very clearly mentioned we should now give less focus on the content. If you see an examination part of this class 10 and class 12 examination, it has been very clearly mentioned that we should make these examinations more easier.
so that children should not have pressure or stress of passing out examination. But we should assess more of the abilities of the child and competencies. So those competencies are to be developed, and in preschool also, in numeracy also, a pre-number concept, and every child can do with different strategies. Then this understanding of numbers, applying numbers in daily life, doing operations on numbers, talking about the shapes, their properties, their characteristics. They're making how one shape is different than the other, how two shapes are similar. These all things every child can do. Only thing, there are some barriers on language. We expect a child who is coming to a preschool should start speaking English language, or in class 1, my medium of instruction is English, that's why you should be able to do it in English. If I ask in his or her own language, I think child will be able to do that also. So competencies are at the lowest level, and we assume that every child can do it because these have scientifically checked and obtained that every child can do it. Okay, thank you, sir. Sir, I have another question. Yes. So, just as you mentioned in the starting of this session, if we take maths as a language, so literacy and numeracy cannot be separated. So, can we take literacy and numeracy are partly interdisciplinary for education? Not for whole of the education, but particularly up to elementary education, up to primary classes. Yes, language and this they are integrated. Even see what happens. आप जरा सोचिए, मैं ना ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो सब्जेक्ट्स का है तो हमने किया, बट अदरवाइज फॉर अ चाइल्ड ऑफ से 5 years और 6 years, वो तो हर चीज देख के क्वेश्चन आ रहा है उसके मन में. हाँ, उसके मन में ये क्वेश्चन भी आता है, ये पानी जब कपड़े सूखने डाले तो पानी चला कहाँ गया? हाँ, ये कहाँ चला जाता है पानी? ये तो क्वेश्चन आया उसके मन में. अब ये तो मैंने डिवाइड कर दिया कि इसका आंसर साइंस में मिलेगा, इसका आंसर साइंस की बुक में देना है, साइंस सब्जेक्ट में देना है. बच्चे के लिए तो क्वेश्चन है, वो पता नहीं, मैं लैंग्वेज में बोलता तो लैंग्वेज में आ जाता, मैथमेटिक्स में बोलता तो मैथमेटिक्स में आ जाता. तो ये कंपार्टमेंटेशन हमारा है, और ये कहीं ना कहीं ब्लर करने की जरूरत है बाउंड्रीज की सब्जेक्ट के. इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं. लिटरेसी और न्यूमरेसी को तो सेपरेट कर ही नहीं सकते. मुझे आज भी यही लगता है, आप लिटरेसी पर कंसंट्रेट करिए, न्यूमरेसी ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि वोकैबुलरी सारी न्यूमरेसी की वहां यूज करनी है. बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा अगर नंबर सेंस नहीं होगी तो. बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा कि किसी एक जगह 4 लोग थे, 5 लोग और आ गए, कितने लोग कुल हो गए, तो ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा कितने लोग वहां थे, जब तक कि वो उसको एडिशन नहीं आता होगा. तो ये एडिशन सीखेगा उसके लिए. तो मैं कहता हूं कि ये मैथमेटिक्स है या न्यूमेरेसी है और ये लैंग्वेज है, बच्चे के लिए सब कॉमन ही है. मैथमेटिक्स में मुझे बता दो बिना लैंग्वेज के कैसे काम करोगे. मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं. आज आप किसी भी लैंग्वेज की वोकैबुलरी में से नंबर्स के जो नेम है ना, उनको निकाल दो. नंबर नेम नहीं हो सकते, वो नंबर नेम नहीं यूज करने हैं. आप जरा कम्युनिकेट करने की कोशिश करो. 20 कम्युनिकेट करने के लिए क्या करेगा बच्चा? 20 चीजें अपनी जेब में लेके चलेगा, और जब कभी 20 बताना होगा तो बताएगा इतनी चीजें हैं मेरे पास, 20 तो बोल नहीं सकता. सो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स फाउंडेशनल लर्निंग अलग नहीं करते, लेकिन उसको फाउंडेशनल लर्निंग बोलते हैं. ये डिवीजन हमारा है कि हमने इसको लिटरेसी, न्यूमरेसी और अलग अलग कह दिया, बट अदरवाइज दिस इज and a teacher of mathematics should understand this and a teacher of language should also understand this. इन दोनों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. इसलिए मुझे तो ये लगता है कि जो प्री स्कूल के लिए टीचर्स हम तैयार करते हैं, वो अलग से नहीं होना चाहिए कि जी ये मैथमेटिक्स का टीचर है, न्यूमरेसी का टीचर है और ये लिटरेसी का टीचर है. वो एक ही टीचर सब कुछ कर रहा है. एंड इवन एक्सपर्ट्स लाइक यू, आप लोग अगर मैथमेटिक्स एजुकेशन में लो लेवल पर काम करें तो आपको लैंग्वेज भी उतना ही सीखना पड़ेगा. हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, व्हाट डू वी मीन बाय रीडिंग, what do we mean by reading pictures, what do we mean by expressing ideas through pictures and through written words and so on. तो ये आप सबको सीखना पड़ेगा लैंग्वेज की इन सारी चीजों को. then only you will be able to do justice. and लैंग्वेज के लोग ये ना कहते जी मेरा तो मैथमेटिक्स बड़ा वीक था इसलिए मैंने मैथमेटिक्स नहीं सीख पाए, लैंग्वेज में आ गए. वो लैंग्वेज में जो चले गए वो लिटरेचर ही है, वो लैंग्वेज की लर्निंग नहीं है. लिंग्विस्टिक नहीं बन पाए कि बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं. अगर आपको लिंग्विस्टिक भी बनना है और मैथमेटिशियन भी बनना है तो बोथ ऑफ दीज टू things are required to be with you. Only then you can do justice with the children. Thank you, Professor Rajput. There are one or two questions. There are 2 questions. Basically, there are plenty of questions, but probably we'll have discussion on those points later whenever we'll have time together. But there are few questions probably which I want to ask you, keeping in mind the audience here.
एक तो हमने हमारा जो एम्फेसिस है वो कॉम्पिटेंसी पर है। अब जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो जो अगर मैं आज का प्रेजेंट करिकुलम देखूं उसमें भी कॉम्पिटेंसीज हैं डेफिनेटली, लेकिन वो हिडन है क्योंकि हम कॉम्पिटेंसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम रोट मेमोराइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं। तो जब हम इसकी तैयारी की बात करें तो हमें एक पूरे ओरिएंटेशन को बदलने की जरूरत है, और ये ओरिएंटेशन बदलने के लिए बहुत मैसिव चेंज की जरूरत है। तो क्या हम इस इतने बड़े पुश के लिए तैयार हैं, और एनसीईआरटी बीइंग द सेंट्रल टू ऑल दीज चेंजेस? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट है डिसाइडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू टेक इट एट द मिशन लेवल, एंड देयर इज अ मिशन डेवलप्ड जिसको हम फाउंडेशन लिटरेसी FLN मिशन कह रहे हैं। एंड MHRD में, सॉरी MOE में, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक सेल बनाया गया है विच विल बी लुकिंग आफ्टर ओनली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और इसके लिए क्या क्या करना है, किस तरह का मटेरियल चाहिए होगा, किस तरह के टीचर्स चाहिए होंगे, दिस ऑल वी आर वर्किंग, एंड इवन हैंड होल्डिंग टू दी स्टेट्स, SCRTs, टू दी स्टेट गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, वो सब हो रहा है, एंड वी आर डूइंग दैट वर्क। एक तो वो सीरियसली सीखना समझना शुरू कर दिया है। और दूसरा, टीचर एजुकेशन में तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था दैट वी हैव टू मेक रिफॉर्म्स इन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन करिकुलम। बेसिकली उस पर ज़्यादा काम करने की जरूरत होगी, और वो ऐसा करिकुलम जो एप्लीकेबल हो। आज मेरा ना BEd की डिग्री, आपकी MME की डिग्री, मुझे पता है कि MME में जो हम बातचीत करते हैं अल्टीमेटली एक टीचर बनने के बाद वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। DLEd की जो हम बात करते हैं वो टीचर बनने के बाद बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन जितनी BEd हम करा रहे हैं ना, सब बकवास है। BEd करने से कोई भी क्लासरूम में जाने पर हेल्प नहीं मिलती टीचर को, या जो भी जाता है वो नए तरीके से सीखता है वहाँ। तो वो नए तरीके से सीखना क्यों हो, क्यों नहीं मेरा प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम इतना अच्छा। दूसरा, इन सर्विस तो और प्रॉब्लमेटिक है। रीजन 2 है। नंबर 1 कि इतनी डिफरेंट एबिलिटीज के साथ, और नंबर इतना बड़ा है ना, लार्ज नंबर, वी हैव 8.5 मिलियन टीचर्स, 85 लाख टीचर्स हैं कंट्री में। अब इन 85 लाख टीचर्स तक पहुंचने की कोई भी स्ट्रेटजी बहुत आसानी से काम करने वाली नहीं है। नंबर 2, अगर ये 85 लाख टीचर्स हमारे आज भी हैं, नंबर 2 ये है कि मैं अगर जो इन सर्विस टीचर हैं वो पहले ही एडिक्वेट नंबर में नहीं है, अप्रोप्रिएट नंबर में नहीं है। मैं जहाँ जिस स्कूल में 2 ही टीचर हैं, एक टीचर को 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए कहीं बुला लेता हूँ और उसको ट्रेनिंग देता हूँ, वो 5 दिन बेचारे उस स्कूल का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा, उस एक टीचर का क्या होगा जो अकेला रह गया। एक ही टीचर है, उसको तो ट्रेनिंग कर बुला नहीं सकते, स्कूल बंद हो जाएगा। सो ये हमारी लिमिटेशंस हैं इतने बड़े सिस्टम को देखते हुए। तो वी आर अडॉप्टिंग मैनी वेज। नंबर 1 जैसे जो टेक्नोलॉजी का यूज है उसको लेके चल रहे हैं, ऑनलाइन मटेरियल को ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सक्सेसफुल हमारे देश में होगा वो देखना है, बट अदरवाइज जैसे अभी तो सबको पानी में धक्का दे दिया था, तैरना सीख ही लिया काफी सारे लोगों ने। टेक्नोलॉजी की जरूरत थी तो करना पड़ा, मुझे आपको सबको लर्न करना पड़ा कि ये गूगल मीट और ये जूम और इसमें कैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे ये सब करते हैं। कोई भी कभी स्ट्रक हुए होंगे, उसके बाद फिर सीख लिया। तो पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, टीचर्स भी सीख रहे हैं ऑनलाइन कैसे कैसे करना है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको लेके चलना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा भी डर तो यही है कि हमारी कंट्री में इट्स नॉट सो ईजी। ये रिफॉर्म्स में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट कंसर्टेड एफर्ट्स होंगे। तो उसमें एक जो मुझे पॉजिटिव साइन दिखाई देता है वो यही है कि FLN मिशन की तरह से इसको लेके चल रहे हैं। दूसरा, वहां से जो समझ बन के चल रही है वो नीचे तक जा रही है। पहले आइसोलेशन में होती थी, SCRTs के पास समझ ही नहीं थी, NCERT में बहुत कम लोग इस पर काम कर रहे थे। तो अब जरा एक मिशन की फॉर्म में हो रहा है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट पीपल हु हैव सिमिलर थिंकिंग, सिमिलर लर्निंग, एंड देन वी डेवलपिंग मटेरियल। हम हर लेवल पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप कुछ तो पॉजिटिव होगा। और मैं आई एम क्वाइट होपफुल कि पिछले 30-40 साल में भी चेंजेस तो बहुत हुए हैं सिस्टम में। इफ यू सी स्कूल एजुकेशन सिस्टम में चेंज अ लॉट, बट ओनली थिंग इज कि उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। सो इसमें भी FLN में भी चेंजेस होंगे, एंड दे शुड बी एट राइट पेस। वो बीच बीच में इंश्योर करना जरूरी होगा। और मैंने पहले ही कहा था कि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक बिल तो पहले जरूरी है। जब तक वो बिल नहीं होगी तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। वेरी ट्रू, एंड आई एम श्योर, क्योंकि इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है, और आपके पास एक सफिशिएंट थिंक टैंक होना चाहिए। जो अभी आपने कहा कि लाइक माइंडेड ग्रुप हमें चाहिए जो इस चीज को
लीड कर सके, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एफर्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। राइट। अच्छा, दूसरा क्योंकि जहां तक बहुत क्लोजली टीचर्स के साथ काम किया है, ग्रास रूट लेवल पर काम किया हुआ है स्कूल के अंदर, हमने बहुत सा रिसर्च के दौरान भी देखा है और वैसे भी देखा है, तो आई ऑलवेज फेल्ट कि हमारा जो एफर्ट है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारे टीचर्स या तो स्किलफुली उसके लिए तैयार नहीं है या एटीट्यूडनली उसके लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एनसीईआरटी के पास क्या प्लान है इसको लेकर? एनसीईआरटी के पास तो किस तरह का प्लान है अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी अल्टीमेटली मॉडल्स बनाने के लिए है। तो एनसीईआरटी ने मॉडल तो जरूर बनाए हैं, वी हैव मेड डिफरेंट मॉडल्स, पर वो जब फील्ड में जाते हैं तो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपको 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपने देखा ही है, बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट बना, हाई लेवल की कॉम्पिटेंसीज के ऊपर बात होनी शुरू हो गई, तभी से कॉम्पिटेंसीज पर बात हो रही थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आके सारी प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि एनसीईआरटी जैसी संस्था इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, वो एडवाइजरी बॉडी है, तो वो स्टैट्यूटरी नहीं है, एडवाइजरी है। जो सीबीएसई के पास है वो एनसीईआरटी के पास नहीं है। तो पर मैं उसको कह नहीं सकता, क्योंकि मॉडल्स भी ऐसे बनने चाहिए जो अल्टीमेटली एप्लीकेबल हो, तो अप्लाई किए जा सके, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो वो एक तो वो एस्पेक्ट के हम इसमें पूरे उस पर काम करें। दूसरा ये है कि हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो भी हम बात कर रहे हैं उस पर काम तो शुरू किया है, हम कर रहे हैं, जिसमें टीचर एजुकेशन है, जिसमें असेसमेंट को लेकर है, जिसमें मटेरियल डेवलपमेंट है, जिसमें रिसर्च चीज के ऊपर ज्यादा काम की बात कर रहे हैं, तो वो सारा है हम कर रहे हैं। अभी एनसीईआरटी हैज डेवलप्ड करिकुलम फ्रेमवर्क जो प्री स्कूल्स के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क है, अब उसको हम रिवाइज कर रहे हैं करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर, जो प्री स्कूल के लिए था और जो क्लास 1-2 के लिए था, कंबाइन करके लर्निंग आउटकम्स बना रहे हैं, और एक ऐसे करिकुलम के बारे में जो फाउंडेशनल करिकुलम के बारे में सोचा जा रहा है। और ये एनसीईआरटी के पास नई नहीं है, ये पहले थी। हमने इसी को प्रोग्राम को नाम आपको याद होगा कभी अगर आपसे डिस्कशन हुआ है, वी कॉल्ड इट एज EYE, अर्ली ईयर एजुकेशन, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ECCE। हमने EYE कहा था जहाँ क्लास 1 और 2 को इसके साथ एसोसिएट किया था, बट देन लेटर ऑन व्हाटएवर वी डेवलप्ड, देन सिस्टम मींस मिनिस्ट्री हैड सर्टेन प्रॉब्लम्स कि अभी हम अगर नाम बदल देंगे तो लोगों को एक बेटर नाम तो प्री स्कूल ही समझ में आता है, अगर आप नया नाम दे देंगे तो पहले तो नाम से ही प्रॉब्लम होगी, समझना शुरू जी सब कुछ नया हो गया, इन्होंने तो पूरा बदल दिया। तो इसलिए नाम वही रख के कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि पॉलिसी में आ गया, सो दैट्स व्हाई दिस हैज नाउ बीन स्टार्टेड, और हम उसको कंबाइन करके वी आर वर्किंग ऑन दैट। जो आपने कहा था कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में वी आर मेकिंग सर्टेन चेंजेस, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात है, दैट एनसीईआरटी हैज ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड इन इट्स रीजनल इंस्टीट्यूट्स, और अब तो लगभग सारे ही 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की बात हो रही है, जहाँ BA B.Ed एलिमेंट्री, BA B.Ed सेकेंडरी, BA B.Ed नर्सरी, ऐसी डिग्री की बात होगी। हाँ, तो जब ऐसी डिग्रीज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली फिर इंटीग्रेशन में कुछ हो पाएगा। सो वी आर फोर्सिंग सर्टेन चेंजेस। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बदलेंगे, जब आइसोलेशन में बीएड का कोई इंस्टीट्यूट खुलेगा नहीं, जिसको बीएड के लिए खोलना है 4 क्लासेज और साथ में पढ़ाओ, एक नॉर्मल बीए भी करवाओ और साथ में तब बीएड इंटीग्रेट करो, तो मुझे लगता है चेंजेस तो होंगे सिस्टम में। these changes we are doing, and एनसीईआरटी जो करती है आप सब लोगों की राय पे करती है, आप सजेस्ट करिए जो आप कहें वो करिए। नहीं डेफिनेटली आप लोगों के पास, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि बहुत मैसिव एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और शायद वर्कफोर्स इतना नहीं होता है। तो और एक चीज और प्रोफेसर राजपूत, जो हम इतना समय से देख रहे थे, फॉर एग्जांपल अभी आपने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया एंड आई फाउंड इट वेरी एक्सीलेंट एग्जांपल, जिसमें आपने मल्टी ग्रेड टीचिंग के क्वेश्चन को आंसर करते हुए लिया था, जिसमें आपने कहा था कि जो द पर्सन हु नोज मोर knowing सो अब जैसे ये एग्जाम्पल है, जिस तरह से आपने समझाया, आई कुड विजुअलाइज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग ये नहीं जान पा रहे हो। तो जब ये डॉक्यूमेंटेड हो रहा है ये बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकली में अप्लाई कर रहे हैं तो नॉट मेनी पीपल आर एबल टू डू इट। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी कुछ स्कूल्स के साथ में ये एक्सपेरिमेंट करे और वो पूरी स्टडी को वीडियोग्राफ करे और
देखे कि कुछ छोटे मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हो, सैंपल वीडियोस बनाए जा सकते हो, विच कैन एक्चुअली हेल्प टीचर्स टू इम्प्लीमेंट इन द क्लास? आपका ये वो अच्छा है सजेशन, बट नॉर्मली ना मुझे लगता है जैसे आपने भी कहा था, कंसर्टेड एफर्ट्स की जरूरत है। वन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू इट। दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च सिस्टम है हमारा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, आपके यहाँ जो हो रहा है, आपने स्कूल एजुकेशन में काम शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। देन यू शुड वट एवर रिसर्चेज आर बीइंग डन, दो शुड बी कम्युनिकेटेड टू एनसीईआरटी। आप हमारा थिंक टैंक हो, आप हमारी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लेबोरेटरीज हैं, आप हमारे लिए हमारी तरह काम करके लेबोरेटरी में जाके करके कुछ ला रहे हैं, रिसर्च जो पब्लिश होनी चाहिए, सो दैट शुड बी टेकन इन अ बिगर वे। एनसीईआरटी का आपको पता है कि हम इसको प्रमोट करने के लिए वी आल्सो फंड पीपल जो पीएचडी कर रहे होते हैं अंडर एरिक। एरिक में आप करते हैं। हाँ, तो वो हम एरिक में रिसर्च चीज को फंड भी करते हैं, और वो फंडिंग सिर्फ पीएचडी के लिए नहीं है, बट एनीबडी, ये टीचर भी अगर करना चाहता है समझ के साथ, आपके यहाँ के कोई लोग करना चाहते हैं तो दे कैन आल्सो डू, फंडिंग भी मिलती है। सो इस तरह की चीजें कंसर्टेड एफर्ट्स की जरूरत है। यू आर राइट, एनसीईआरटी मल्टीटास्किंग भी बहुत बार कर रहा होता है। मैं जैसे काम कर रहा हूँ, आई एम नाउ हेडिंग पब्लिकेशन डिवीजन, जिसका कुछ मैथमेटिक्स लेना देना नहीं है। मैं मैथमेटिक्स में 1 to 12 सारा ही कर रहा हूँ, और टीचर एजुकेशन, तो वो जो फाउंडेशनल लर्निंग था, वो तो मेरी कोई बेसिक डिग्री थोड़ी थी फाउंडेशनल की। मेरी तो मैं अगर मैंने एमएमई किया होता तो शायद जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ वो मैं आज से 40 साल पहले कर रहा होता। लेकिन तो सारा एक्सपीरियंस है और आप लोगों से सीखा। जब आप लोगों से सीखा तो मैं आगे आगे लेके जा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ सिस्टम में थोड़ा वो तो है। हमें आज मैं कितने सालों से ये कह रहा हूँ कि इवन एनसीईआरटी हैज नॉट टॉक्ड अबाउट दिस। हम पर्टिकुलरली बीएससी इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, बीएड इन साइंस एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, और तो बीएससी बीएड करवा रहे हैं, बीएड ही करवा रहे हैं। बीएड में सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और मैथ्स एजुकेशन तो आता ही नहीं है। एजुकेशन वाले को ना मैथ्स आता है, ना मैथ्स वाले को एजुकेशन आता है। गड़बड़ कर दी हमने। तो ये अलग अलग डिग्री डाला और भेज दिया टीचर को, फील्ड में सरवाइव करो। यस, दैट्स वेरी ट्रू। आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले हुआ था डीएलएड वाला प्रोग्राम, दैट वाज एक्सीलेंट प्रोग्राम, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम ये रही शुरू में कि डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। आप 4 साल की डिग्री करवाते हो जी, उसके बाद उसको बीएलएड के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन के एक डिप्लोमा डिग्री के साथ भेजते हो। वो किसके लिए सूटेबल हो रहा है? एलिजिबिलिटी मिनिमम किसके लिए बन रही है? प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। वो तो जबकि 4 साल की डिग्री और 1 साल का बीएड करने के बाद तो सेकेंडरी स्कूल में टीचर बनता टीजीटी, आपने लगा दिया पीआरटी। वो तो बेचारे को मोटिवेशन ही नहीं रहने दिया। नॉलेज अच्छी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो कोर्स आपके यहाँ प्रोफेसर दिनेश सिंह ने शुरू किया, आपने शुरू किया एमएमई वाला, और इसके बाद और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हुआ, इट्स एक्सीलेंट प्रोग्राम। और हम इसी की बात कर रहे हैं कि हमें ऐसे ही प्रोग्राम्स की स्पेसिफिकली बात करनी चाहिए। रिसर्च ही जिसमें होनी चाहिए, रिसर्चर इन मैथ्स एजुकेशन, रिसर्चर इन साइंस एजुकेशन, ऐसे रिसर्चर्स होने चाहिए। आज कहाँ हैं लोग मेरे पास? या तो एजुकेशन के रिसर्चर हैं या मैथ्स के हैं। वो पेडागोजी पे कुछ आइसोलेशन में 2-4 स्कूल में कर लेते हैं, बट वो जो एक बड़ी रिगरस रिसर्च की जरूरत है। थोड़ा बहुत अभी जो मेरी नॉलेज में है, यू कैन दी स्टूडेंट्स इफ दे ऑलरेडी नो दैट इज गुड, अगर नहीं पता है तो आप लोग TFRI के जो टाटा TIFR के जो वो है HBCSC, उसमें जाकर देखिए, वो बहुत काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है एरिया में, तो आप वो देख सकते हैं। इवन ये तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज कुछ ज्यादा स्कूल एजुकेशन पे नहीं कर पा रहा है, उनका कोई बड़े रिसर्च इसमें नहीं है, बट आइसोलेशन में काफी लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आउटरीच प्रोग्राम्स उनके कुछ हैं थोड़े से। हाँ। और एक जो फिर वो कंसर्न है, वो शायद फिर हमने इस बार छोड़ दिया। हमने फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स की हमने बात नहीं, हम अभी भी कर रहे हैं वही वन एकेडमिक ईयर की बात कर रहे हैं, और हम अभी वही बात कर रहे हैं कि चाइल्ड विल बी स्ट्रगलिंग। 1 साल में बच्चा ये सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। अगर वो 1 साल से पहले सीख जाता है तो क्या होगा? वो जो लेंथ ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड 1 academic year is still we are not able to come out from it. Yes, I know. रिफॉर्म्स की जरूरत तो है, निकालेंगे। I think yes. You please have water. Yes,
सो देखिए, ये रिफॉर्म ना बहुत बड़ा है जो आप कह रही हैं। अभी तो हम 10 साल की एजुकेशन से नहीं निकले बाहर। कैसे 1 साल में मल्टी वो करेंगे, सर्टेनली वी हैव टू सी। पहले तो हमारे पास इसके आंसर नहीं है कि मैंने 10 साल की कॉम्पिटेंसीज बना दी। एक 15 साल के बच्चे में ये एक्सपेक्टेड है वो इस तरह का सिटीजन बनना चाहिए, इतना मैथमेटिक्स इसके लिए उसको इतना मैथमेटिक्स आ जाना चाहिए, इतना साइंस, इतना सोशल साइंस, इतना लैंग्वेज, इतना ये, इतना वो, ये सब उसमें होना चाहिए। मैंने ये एक्सपेक्टेशंस 15 साल के बच्चे बनाई। हमने इसको 10 भागों में डिवाइड कर दिया ईयर वाइज। 10 भागों में क्यों किया? 20 में क्यों नहीं कर लिया? 6-6 महीने का क्यों नहीं कोर्स बना लिया? वेरी ट्रू। हमने 2-2 साल में कर लिया। अगर आज भी देखें तो एजुकेशन सिस्टम में हमारा पूरा सिस्टम जो डिवाइड है वो स्टेजेज में है। क्लासेज में उस पर ज्यादा काम हमने करना शुरू कर दिया सिलेबस का। हमने क्या किया था, क्लास 1 2 3 की एक स्टेज है, यस, 4 5 की एक स्टेज है, 6 7 8 की अपर प्राइमरी स्टेज हमने कह दी थी, 9 10th की सेकेंडरी स्टेज कह दी थी, 11 12 की सीन हमने तो 2-2 साल 3-3 साल की स्टेजेज कही थी। ईयर वाइज हमने आगे डिवाइड कर दिया। इनको वो स्टेजेज भी रखते तो शायद ये जो ईयर की बाउंड्रीज है ना, ये थोड़ा कम हो जाती, वो ईज आउट हो जाती। बच्चे को 3 साल में करना है और 3 साल में वो बेटर कॉम्पिटेंसीज के साथ आगे, कोई जो बच्चा है ना चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ रहा है, थोड़ा बेटर कॉम्पिटेंसीज के साथ है, थोड़ा लोअर कॉम्पिटेंस मिनिमम सबके पास है, तो ये होगा तब जब हम इस तरह से सोचना शुरू करेंगे। हम करिकुलर एक्सपेक्टेशंस तो स्टेज वाइज बना रहे हैं, लेकिन हम लर्निंग आउटकम, करिकुलम, सिलेबस ये स्टेज वाइज नहीं बनाते, क्लास वाइज बनाते हैं, जिसको ढूंढने की जरूरत है। हर साल एग्जाम की इसीलिए आ गया क्योंकि हर साल का पता करो कितना सिखाना था, उतना सीखा कि नहीं सीखा, बाकी छोड़ दो वहीं। 40-50% सीखा, 50% डेफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ जाओ। डेफिशिएंसी के साथ बेसिकली आप ये सोचिए कि कितने बैगेज के साथ बच्चा आगे जा रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है। बट ये पूरे सिस्टम को मूव करने की जरूरत है। एंड प्रोफेसर राजपूत, इट वाज एक्सीलेंट टॉकिंग टू यू। आपके साथ हमेशा काम कर बात करके हमेशा अच्छा लगता है। इट इज ऑलवेज अ वेरी जॉयफुल एक्सपीरियंस. Thank you for sparing your time, and we would like to have many more interactions so that our students are benefited and we can work together in future also.